तुम। جی میر صاحب بتائیں ذرا، آپ میری لائیو پر ہوتے تھے؟ بھائی جی امے بازی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب سورج چمکتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، جی آپ تو روزے روشن کی طرح ہیں یہاں ہیں، نہیں آپ کی کاوشیں، آپ کی محنت۔ میر صاحب بتائیے۔ بالکل بالکل ٹوانا صاحب، لیکن وہ بے غیرت جو ان پر شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو، میرا ان کے لیے بھی پیغام ہے، یہ صرف براڈ میرے لیے نہیں لگائی گئی ہے نا؟ نہیں، میرا سوال مطلب مجھ ہے سے آپ کر کے رہے ہو، اوپر، میرا مطلب گلٹی ہے آپ کے مجھے اوپر کروا رہے ہو، اوہو ذلیل میرا نہیں مجھے بازی کروا وہ رہے کہہ ہو۔ رہے ہیں آپ کے میری خلاف بات نہیں سنو لگائی، نا، آپ کے ایک خلاف نہیں لگائی۔ ایک منٹ میر صاحب، یہ چلاکیاں نہیں چل رہی، جی یہ ہوشیاریاں نہیں چل رہی آپ کی، بہت کر لی آپ نے نہیں ام صاحبہ، میرے آپ پروف خلاف دے دیں روڈ نا، لگا کر اور آپ مجھے پروف دے دیں قادیانی کون سا یو ثابت کے میں کرنے کے کیا لیے۔ ہوا، جی کون سی جماعت کے اوپر کیا ہوا، آپ ہوا میں باتیں کری جا رہی ہیں، کون سی جماعت میں کون المنان صاحب جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ ہوا، کینیڈا میں ہوا، آپ نے ہوا میں بات کر دی، ایکسپلین کریں کون سی بات تھی، کیا ہوا، میری کون سے بات مربی سنیں، نے؟ میری بات سنیں، آپ جس وقت یہ معاملات ہوئے تھے کینیڈا میں، جس وقت وہ لڑکا جو تھا وہ پکڑا گیا تھا، تو سب سے پہلے کس نے ایکسپوز کیا تھا ان کو؟ عمر رباب نے۔ تمہیں تو یاد ہی بھول گیا، ہاں بڑے مجاہد بنے ہوئے ہو تم، اور کہہ رہے میں عمر رباب کی حمایت کر رہا ہوں، یہ عمر رباب کو ذلیل کرنے کے لیے، عمر رباب کو جو تھریڈ بھجوائی ہے تم لوگوں نے میرے واٹس یہ ایپ کے وڑائچ اوپر۔ صاحب پیچھے سے میسج کرتے ہیں میر کو، وڑائچ صاحب میسج کرتے ہیں میر کو، میر بڑا اچھا لڑکا ہے باجی، آپ کو تو پتا ہے امے باجی۔ کوئی اچھا ابھی اچھا نہیں ہے ان میں، سب ایک رنگ کے رنگے ہوئے ہیں۔ میر اچھا لڑکا ہے، ایک اچھا بن کے آ جاتا ہے، پیچھے گنڈے مستڈے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ اگر طریقہ کار ہے واردات کا۔ اگر کینیڈا میں ایسا کچھ ہوا ہوتا تو رانا راشد صاحب نیچے آئے ہیں، وہ اس کی کرتے نا، حمایت نہ کرتے کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے بچیوں کے ساتھ، جماعت کے بندے نے دیکھیں زیادتی میری کی بات ہے۔ سنیں، میرے پاس ابھی بھی اس کے پروف ہے، رانا صاحب کو بھی یقینی طور پہ پتا ہوگا، لیکن بات تو اس وقت جو ہو رہی ہے کہ عمر رباب قادیانی، اس کو گالیاں نکالو، ٹھیک ہے؟ عمر رباب کے بچے اس طرح کے، عمر رباب فلاں، وہ اس لیے آج سمجھتے ہیں آپ آج مرزا مجھے صاحب کے اوپر کٹہرے میں نہیں نا، کھڑا ان کے کیا، آج مرزا مجھے صاحب کو آپ کٹہرے نے میں کبھی، کھڑا کر کے میری مطلب وہ بات کر رہے ہو، تو میں تو بتا رہی ہوں کہ وہ بھئی اسی سب لیے سے سمجھتے ہیں پہلے نا جی مرزا صاحب کے اوپر آپ نے کبھی واضح طور پہ کچھ کیا سمجھتی ہیں آپ مرزا صاحب کو؟ میں مرزا صاحب کو وہی سمجھتی ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیان کریں، ان کو ہاں میں پتا مرزا چلے، صاحب کو وہی سمجھتی ہوں، کیا بالکل۔ سمجھتی ہیں؟ میں نے بہت دفعہ یہ دیکھیں، اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، جب بات ہوتی ہے، جب ضرورت پیش آتی ہے تو میں کہہ دیتی ہوں، میں یہ بات آپ لوگوں کو بھی یہی کہتی بات ہے ہوں نا، کہ ہر وقت یہی کی بات ہے، لت نہیں۔ اسی لیے تو دیکھیں تاثر ظاہر نہیں ہو رہا، اس تاثر کو ظاہر کریں امے صاحبہ آج۔ دیکھو میری بات سنو، میں نے 1000 دفعہ یہ بات کہی کہ میں مرزا غلام قادیانی صاحب کو وہی سمجھتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھوٹے مدعی نبوت کے لیے کہا، کیا اور کہا تھا نبی کریم ان صلی کو اللہ علیہ کذاب وسلم بھی نے؟ کہا، اس کو دجال بھی کہا۔ تو آپ مرزا صاحب کو کیا مانتی ہیں؟ میں ان کو جھوٹا مدعی نبوت مانتی ہوں۔ مطلب کذاب دجال نہیں کہیں گی آپ؟ بھئی میں نے کہا نا کہ جھوٹا مدعی نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور کذاب کہا، اور میں مرزا صاحب کی جو نبوت ہے اس کو سچا نہیں مانتی، میں اس کو جھوٹا مانتی ہوں۔ جی جی امیر بالکل صاحب ٹھیک ہو تسلی گیا، ہو گئی ہے؟ نہیں میری تسلی کے اوپر نہ جائیں، مجھے تسلی آلریڈی ہے، وہ جو لوگ ہاں وہ جو تمہاری تمیر، میری بات سنو، جو تم چلاکیاں اور ہوشیاریاں کرتے ہو نا، میں نے سدھو کے ساتھ تجھے دیکھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ میں نے تمہاری بدماشیاں دیکھی نہیں ہوئی، مجھ سے کون سی بھول ہے تمہاری؟ صاحبہ، مجھے میں نے یہ کبھی آپ بتاؤ کو کہ طاہر کی طرح میں تو کینیڈا کا کی طرح اسکینر نہیں رکھ کہا، دیتی ہوں، جو مجھے کہیں کہ دیکھیں بتاؤ مجھے، تم رکھو، تم لوگوں کو پتا ہے، میں نے تم جو کبھی طاہر مجاہد کی بنے طرح، ہو۔ آپ ہاں طاہر کو اچھا سمجھتی ہیں، آپ طاہر کو اچھا سمجھتی ہیں، جو آپ کو دوغلی عورت کہہ رہا ہے نیچے لکھ رہا ہے، میں نے کبھی کہا ہے ایسا؟ آپ اس کو بڑا اچھا سمجھا ہوا ہے آپ نے، تو پھر یہی تاثر آئے گا کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، یا پھر واضح کریں آپ اس کے ساتھ ہیں کہ کیا ہے۔ دیکھیں امے صاحبہ، اس نے دیکھو آپ کو استعمال طاہر کیا، کو اس میں نے آپ بیٹا، کو… میری بات سنو ایک منٹ، ایک منٹ، طاہر کو جی میں بیٹا کہتی ہوں بحیثیت انسان، بحیثیت اس کے اخلاق، اور بحیثیت کہ وہ ایک بچہ ہے جماعت احمدیہ میں سے ہم سے بدزن ہو کے وہ چلا گیا، مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہے،
मुझे उसके साथ मोहब्बत है, ठीक हो गया। और इस मोहब्बत को ना तुम कम कर सकते हो। मेरी जहां पर भी मतलब मुझे वो मिलता है, मैं उसको हमेशा बेटा कहती हूँ, ठीक है। मीर, तुम्हें मैंने बेटा कहा, तुमने क्या सिला दिया? आज मुझे कटारे में खड़ा किया हुआ 5 मिनट के बाद। कितनी के मेरे खिलाफ ब्रॉडें लगाई है तुमने? कितनी की फिजान ने ब्रॉडें लगाई है? और तुम लोग हमारा जिस मुतालबा तो वक्त यही है गालियां ना, निकलती थी तो ठट्ठे उड़ाते थे आप लोग। हमारा मुतालबा तो यही था ना कि आप उस तासुर को जायल करें। वो आपने कर दिया, ठीक है, आपने मिर्जा साहब को कह दिया। लेकिन दूसरी ब्राडों का जो आप नाम ले रही हैं मैंने कभी नहीं सुनी। हाँ, कभी गुजरते हुए देख लिया जी होगा जी जो जी आपने जी, आपने कभी नहीं सुनी जहां पर कहा जाता था कि उम्मे रुबाब की बेटियों के साथ इज्तिमाई ज्यादती करे, वो नहीं आपने सुना। आज जो जगह ने गालियां दी वो आपने नहीं सुनी। आपने जो सिद्धू जट ने कल कहा, आज कहा, वो आपने नहीं सुना। जो 3.5 साल तक गुज्जर और आकाश मलिक और ये मेरे खिलाफ ब्रांडे लगाते रहे, आज तक नहीं सुना। ना आपके आलमों ने सुना और ना आपने सुना। आज आप उम्मे रुबाब ने जवाब दिया तो सबके कान खड़े हो गए। देखें नहीं, फिजान साहब, अपने अपने आप को बचाना है, अपने उस्ताद मोहतरम को बचाना है। तो मुझे बताओ कि जो स्कैंडल इलामा इकबाल से लेकर उलमा से लेकर जो उम्मे रुबाब ने अपनी लाइवों पे किया, एक ब्रॉड अपनी दिखा दो कि तुम लोगों ने लगाई हो ऐसी एक ब्रॉड। मुझे फिर इसका मतलब मैं कहूं कि तुम कादियानी हो, फिर मैं कहूं तुम लोग पैसे लेते हो, फिर मैं कहूं कि तुम लोग अंदर से मिले हुए हो। क्या उम्मे साहबा आपने जो ब्रॉडें लगाई, क्या वो कादियानी मानते हैं कि उनके मुरब्बी ने ये रेप किया और बच्चियों के साथ जो रेप हुए कनाडा में और यूके में और ये जो मलेशिया में, क्या फायदा हुआ आपको? देखिए, वो माने या ना माने, ठीक है, आप गूगल करें, आप चेक कर लें, आप देख लें। वो तो कोई चीज ढकी छुपी तो नहीं है ना। 1 मिनट का मौका दीजिएगा यार। माने ना माने सब चीजों के पीछे अफजल उड़ाई है, सब चीजों के हाँ, पीछे। सब चीज़ों के पीछे अफजल बड़ाइच है। अच्छा, एक बात जो मैं इसमें सिर्फ मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं वैसे हैरान हूँ मीर साहब, आप उमर रुबाब को कितने अरसे से जानते हैं? तकरीबन 4-5 साल हो गए। हाँ, तो 4-5 साल के बाद अगर आज आपको ये नौबत आई है उनके अकीदे का सवाल पूछने की, तो मेरा सवाल आपसे भी ये है कि ये नौबत आपको बहुत पहले क्यों नहीं आई? क्योंकि ये तो गैर ज़िम्मेदारी है कि आप एक शख्सियत के साथ इंटरेक्ट करते हैं इतने लंबे टाइम्स के हिसाब से। टाइम्स से मुराद ये है कि ब्राडों में बैठते हैं लंबा लंबा, और उनके अगर आपको अकायद का कन्फर्म ही नहीं है, फर्म ही नहीं है, तो देन व्हाट? फिर आप अगर आज आपको ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपकी जजमेंट जो है उसके ऊपर शदीद क्वेश्चंस हैं कि भाई इसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 2, एक सेकंड तो ठहर जाए। नंबर 2 इसके जवाब ले लें, नंबर 3 इसकी जवाब ले लें। नहीं, एक सेकंड, मुझे भूल जाएगा ना। नंबर 2 और नंबर 3 ये कि अगर आप जैसा बंदा इतने अरसे बाद एक इंसान के ऊपर पहले जिसे शक नहीं है और उसे मुसलमान समझे, आज मुसलमानी क्वेश्चनेबल कर दे, तो फिर आपकी अपनी इंटेग्रिटी जो है वो उसके ऊपर सीरियस सवाल उठेगा। नंबर 3 हो गए। चौथा मैं ये मेंशन करूँगा, जब मैं नया आया था उन दिनों उमर रुबाब और पीर इसकानी अंडर अटैक थे। ये एक अपनी ब्रांड लगा के बैठा करते थे, बाकी सारे लोग आते थे इनके ऊपर, कुछ लोग इनकी साथ सॉलिडारिटी में थे, कुछ लोग आके इन्हें गाली गलौज करते थे, और इस तरह से मैं इनके साथ मेरी वाकफियत का आगाज़ हुआ। अब मैं इन हालात में चलता रहा। अब उसके जल्द ही कुछ महीनों में, विद इन फ्यू मंथ्स, मेरी अपनी कंट्रोवर्सी दरूद इस्लाम की खड़ी हो गई। उस दौरान मुझे जब उमर रुबाब से 1-on-1 गुफ्तगू का मौका मिला दरूद इस्लाम के ज़िमन में, तो मुझे उमर रुबाब के ज़िमन में और पीर अस्कानी के ज़िमन में मेरे ज़हन में जो सवालात थे, सवालात इसलिए थे कि मार्केट में उनके मतलब ये मशहूरी थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के क्वेश्चनेबल, तो ज़ाहिर है मैं इनके पास तो बैठता था इनकी बात सुनने, लेकिन मैं एज ऑब्जर्वर था उन दिनों में, अभी नया था। जब इनके साथ मेरी 1-on-1 गुफ्तगू हुई तो मीर साहब मुझे तो कोई एक रत्ती बराबर भी शाइबा नहीं रह गया कि ये खातून हज़ार इनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और लड़ाई झगड़ा भी कर सकती हैं, गाली गलौज भी किसी को कर सकती हैं, लेकिन एक बात मुझे मीर साहब कन्फर्म हो गई कि ये औरत कादियानियों की सहूलतकार नहीं है। ना ये सहूलतकार है, ना इसके अकायद में किसी किस्म की कोई लचक और झोल है। और ये मैं मीर साहब इस बुनियाद पे मैं नतीजा मैंने निकाला, ब्राड्स में नहीं निकाला,
براڈز میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے میں نے وہ نتیجہ اخذ نہیں کیا. اس کا جواب میں لے نے لیں وہ بھائی صاحب، نتیجہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. سن لیں میں نے وہ نتیجہ اخذ کیا جب واٹس ایپ کے اوپر اس خاتون نے مجھے درود و سلام کا مسئلے سمجھائے. دوسری بات اس عورت نے مجھے یہ سمجھائی کہ دنیا میں بدترین، کیونکہ میں جب مسلمانوں کے اوپر بھی اٹیک کر رہا تھا، ظاہر مجھے گالی گلوچ ہو رہی تھی، میں تیش میں آ کے میں بھی جواباً مطلب کچھ ایسے نازیبا مطلب گفتگو بھی کر رہا تھا. تو اس خاتون نے مجھے کہا کہ گالیاں وہ مجھے بھی دیتے ہیں، آپ کو بھی دے رہے ہیں، پیر کسکان اور بھی لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن یہ مت بولو کہ برے سے برا جو مسلمان ہے وہ قادیانی سے ہر قیمت پہ وہ کئی گنا افضل ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. یار یہ کوئی وہ بندہ یہ الفاظ کسی کو پردے میں، جب واٹس ایپ کے اوپر میں اور آپ صرف میں اور یہ خاتون بات کر رہی ہیں تو اس وقت اسے کوئی مجبوری نہیں ہے، اس وقت تو یہ اپنا سچ کہے گی نا. جب مسلمانوں کے ساتھ جب مسلمانوں نے مجھے نشانے پہ رکھا ہوا ہے اور مجھے گالی گلوچ ہو رہی ہے اور میں کارنر میں ہوں اور میں زخمی حالت میں ہوں جیسے وہ ہوتا ہے، تو اس وقت تو انہیں پھر میرے ساتھ سولیڈیرٹی کرنی چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان بڑے برے ہیں، یہ قادیانی اچھے ہیں، تو بڑائی اسی صاحب طرف اچھا ہے. جواب لے لیں، جواب لے بلکہ لیں. انہوں نے مجھے سن لیں، دیکھیں یہ اللہ کو میں نے جواب دینا ہے. اس خاتون نے مجھے اپنا دل و جان لگا کے تبلیغ کی، اپنے آورز کے اوپر، اپنے ٹائم کے اوپر اور اپنی انرجی کے اوپر. اس خاتون کی میرے ساتھ آج بھی لڑائی ہے، خدا کی قسم لڑائی ہے. آج بھی بلاک ہم کھیل رہے ہیں، واٹس ایپ کالیں بھی بند تھیں کل تک، پوسٹ بھی میں نے لگائی ہوئی ہے. لیکن یار ایک بات کی میں گواہی دوں گا کہ یہ عورت مسلمان ہے، برحق مسلمان ہے اور بڑی کٹر عقیدے کی خاتون ہے. اور اس کا مطلب دیکھو یار، ون آن ون ایک بندے کو یہ تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں بڑائی صاحب. صاحب میری بات سن لیں، جواب سن تو لیں. جو لوگ اس خاتون کے پیچھے آج بھی بات ایسی کریں سہولت کاری ان کی فلان کی ٹمکان کی، میرے خیال میں یہ ذلت امیز میں اس کا جواب دے رہا ہوں. غلط ہے، غلط کرتے ہیں. فیضان صاحب دیکھیں، افضل صاحب یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، میرا اپنا بھی خیال شروع دن سے جب سے میں نے ان کو سنا ہوا ہے، ان کی اپنی براڈ بھی میں نے سنی ہوئی ہے، وقتی طور پہ چلے ابھی اختلاف ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں نے یہ جو ان سے ابھی پوچھا ہے نا، یہ جو براڈز انہوں نے کی ہوئی ہیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ پراپر بیٹھ کے سنی نہیں ہوئی. یہ جو مربی نے کینیڈا میں جو کچھ کیا بچیوں کے ریپ والا، اور یو کے میں جو کچھ ہوا بچوں کے ساتھ، جو کچھ زنا یہ جو جماعت احمدیہ کے لوگوں نے کیا، ان کے بڑوں نے، یہ جو ام صاحبہ نے اس کے اوپر براڈ کی ہوئی ہے، اور یہ جو اب فیضان مربی ملیشیا میں جو اس نے عورت کو ہراساں کیا اور اس کے ساتھ بھی زنا کیا اور بلیک میل کیا، یہ ام صاحبہ نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے. یہاں پہ ان سے پوچھنے کا مقصد ان مسلمانوں کے لیے تھا جو لوگ شک کرتے ہیں ام صاحبہ کے کردار کے اوپر، اس لیے انہوں نے یہاں پہ وہ ظاہر کر دیا کہ وہ مرزا صاحب سے پوچھا ہوا سوال ہے. سمجھ گیا ہوں میں، بدنیتی کی بجائے ایک نیک نیتی سے پوچھا ہوا سوال ہے. ٹھیک ہے، نیک نیتی پہ میں نے پوچھا ہے. بالکل کلیئر ہوگی بات، بالکل ان کو پتہ السلام چل جائے کہ علیکم میر صاحب. رضی صاحب بھی نیچے آئے ہوئے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بات جو یو کے والی ہے اس کے بارے میں بتایا جائے. ان کی آئی ڈی نیچے سوال کر رہی ہے یہ والا نا. رضی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یو کے والا جو اسکینڈل ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتایا جائے. رضی صاحب نیچے بیٹھے بھی آپ نے بات کی ہوئی ہے کچھ؟ بالکل اس کے اوپر بھی کی جو مدارس میں مدرسہ تھا جو بیگم نصرت جہاں کا، اس کے اوپر بھی بات کی، علامہ اقبال کے اوپر بھی بات کی، اور باقاعدہ ریفرنسز اور جو رپورٹ تھی اس کے اوپر بات کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھوڑا تھا سا ایکسپلین کہ کریں مجھے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا اس کا. ٹھیک ہے، جو مجاہد ہے، اب جو سب سے بڑے یہاں پر ظفر اللہ شاہ صاحب اور ان کا شاگرد جو بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہے کہ عمر بات تیری ساری باتیں صحیح ہے لیکن میں تو اپنے استاد کے پیچھے ہوں، میں کہوں گا وہ جو میرا استاد کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کو یہ اعلان یاد ہو، یہ چیلنج اپنا یاد ہو، تو میں کہوں گی کہ ذرا براڈو کا بتائے کمپیریزن کر کے اپنا اور میرا کرے، میری ایکٹیویٹیز، اور پھر اس کا پھر اپنے آپ کو کہیے گا کہ نہیں ہم سہولت کار تھے، ہم پیسے لیتے تھے، ہم جماعت احمدیہ کے ساتھ ملے ہوئے تھے. پھر عمر واپ کو نہ کہیے گا. تو چلے شروع ہونا فیضان صاحب، کرے شروع، کہاں سے کرتے آپ؟ میری بہن نے سب کو لاجواب ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو کبھی اس طرح کی سوچ کا نہ تو شکار رہا ہوں
وہ جو میں نے بات کہی تھی استاد محترم والی، وہ تو ایک علمی ایک اختلاف کی بنیاد پہ کہی تھی، جو کہ کل پرسوں ہمارا ایک آیت کے اوپر اختلاف ہوا۔ ابھی جو میر صاحب نے سوال کیا ہے وہ نیک نیتی کی بنیاد پہ تھا، افضل وڑائی صاحب بھی سمجھ گئے۔ دوسرا وڑائی صاحب وہ ایک تاثر کو زائل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ نیچے جو احمدی دوست ہیں، جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے، وڑائی صاحب کہاں گئی ان کی غیرت؟ یہ اس غیرت کو جگانا اور ان کو یہ بات یاد دلانا مقصد تھا کہ تم مسلمانوں کے خلاف جس عورت کو استعمال کر رہے ہو، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو دجال اور کذاب مانتی ہے، سچا نہیں مانتی۔ نہیں، یہ آپ بتا دیں کتنے منٹ پہلے اور کتنے گھنٹے پہلے، یعنی 3.5 سالوں میں؟ واہ جی واہ فیضان صاحب، یہ مسلمان ہو گئی ہے، سن لو۔ کتنے منٹ پہلے یہ بتا دیں، نہیں یہ بتا دیں میں کتنے بتاتا ہوں۔ منٹ میں پہلے، آپ کو کتنے گھنٹے پہلے یہ عورت مسلمان ہو گئی؟ میں آپ کو 2 سال سے جانتا ہوں۔ وہ بات کلیریفائی ہو گئی ہے۔ میری سن لیں بھرپور دشمنی کر رہا ہے، سسٹر میری ٹھیک بات ہے؟ سن لیں، سن لیں، اس سن نے لیں، میرے باپ سن لیں۔ کی گواہی وہ دی بات ہے۔ کلیریفائی ہو گئی ہے، جو بات کلیریفائی ہو جائے اس کے اوپر ڈویل نہ وہ کریں، کلیریفائی ہو گئی ہے، اور یہ ان ضرورت لیکن مندوں افضل کو بھائی 5 منٹ پہلے آپ کی گواہی کے بعد نہیں، میں بتاتا ہوں، ان کی اپنی مجھ ذات سے کے لیے پوچھے نا، انہوں نے میں سوال بتاتا نہیں ہوں۔ کیا۔ یہ بات انہوں نے، میرا خیال ہے ان کی بات میں پورا وزن ہے، کریڈیبل بات ہے، اس میں کوئی وہ شک و شبہ مجھے نہیں ہے اس میں کہ وہ بات ایک نیک نیتی سے انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ یہ صرف یہ جو ضرورت مند ہے نا، ضرورت مند جو ضرورت کے وقت ایک مسلمان کو لے کے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو گالیاں پڑھواتے ہیں، ان کی غیرت کو جگانا مقصد تھا کہ سن لو اور اس بات کو تازہ کرو کہ یہ سرکار ایک مسلمان بھائی غیرت معذرت، ایمانی والا مسلمان ہے۔ آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا، آپ کا اس موقع پہ ام صاحبہ سے یہ سوال نہیں بنتا تھا بھائی، یہ آپ نے جو سوال کیا آپ کا یہ سوال نہیں بنتا تھا۔ دیکھیں اختلافات اپنی جگہ، یہ بات درست ہے کہ پچھلے 3-3.5 سال سے کوئی ایک مائی کا لال ایسا دکھا دیں جماعت احمدیہ میں سے جس نے ام صاحبہ کا سامنا کرنے کی جرت کی ہو، وہ چاہے میر سلیم ہو، چاہے وہ سیفی مربی ہو، چاہے انصر رضا ہو، چاہے جو بھی ہو، کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دیں جو اس ام صاحبہ کے سامنے جو ٹک گیا ہو۔ تو بھائی وہ پچھلے یہ جو آپ آج کی بات کر رہے ہیں نا کہ مرزائیوں نے ان کو بٹھا کے تو وہاں جو سارا کچھ کیا، اور بھائی یہ تو سب کے سامنے ہے، پچھلے 3.5 سال سے جو ان کا نیریٹو ہے وہ سارے کا سارا نیریٹو وہ جماعت کے خلاف ہے۔ تو یہ آپ کا اس موقع پہ یہ سوال نہیں بنتا تھا۔ بڑائٹ صاحب کی بات درست ہے، جی جاری رکھیں۔ اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ یہ بتائیں کہ صرف یہ 5 منٹ پہلے کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے 3-3.5 سال سے، پچھلے 3-3.5 سال سے جو عورت بار بار یہ بات کر رہی ہے کہ وہ مرزا غلام قادیانی صاحب کو اسی حدیث رسول کے مطابق، اب میں چونکہ احمدی دوست ہے ان کی دل آزاری ہوگی تو وہ نہیں کہتا، لیکن یہ مرزا صاحب کے اس دعوے کو یہ ہرگز سچا نہیں مانتی، بلکہ مرزا صاحب کے اس دعوے کی تکذیب کرتی ہیں، جھوٹی ہیں، وہ ان کے اس دعوے کو جھوٹا سمجھتی ہیں۔ ٹھیک ہے سرکار بھائی، تو اب آپ اگلی بات کریں جو آپ بات کرنے لگے تھے۔ السلام علیکم سرکار بھائی۔ سرکار بھائی 4 نقطے میں بھی ایڈ کروں گا چھوٹے چھوٹے۔ ان کو ذرا بات کرنے دیں اے آر بھائی۔ جی سرکار بھائی فرمائیں۔ یار جی ورک جی جی یار اس کو تو نیچے بالکل کرو یار، یہ کون ہے ارک یار؟ بالکل وہ بات درست ہے اپنا علی بھائی، آپ نے جو بات کی ہے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے تمام دعووں کی تکذیب کرتی ہیں، حدیث رسول کا مصداق سمجھتی ہیں، صرف اتنا کافی نہیں، اسی پہ بس نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ صاحب آنکھیں کھولیں، جناب راجہ عطاء المنان صاحب ذرا آنکھوں کو کھولیں، اپنے کانوں کو کھولیں۔ یار اسٹوڈنٹ کو نہ کچھ کہو یار، تمہارا بھائی ان کو سمجھائیں یار، نہیں یار، میں ان تمام قادیانیوں کے ہر طرح کے پردے کھلواؤں گا، کانوں کے، آنکھوں کے، ناک کے، کہ یار سارے پردے کھول کے یہ بات میری دل کی تختی پہ لکھ لو۔ اچھا ذرا سرکار غور سے بھائی، سننا اس بات کو کہ اس وقت جب یہ شو چل رہا تھا، طاہر صاحب ایک ڈرامہ چلا رہے تھے، تو اس وقت نیچے عمران کالو صاحب، آپ کے جناب دیگر دوست کون کون تھے، مجھے تو اب نام بھی ان کے یاد نہیں، کیا کمنٹ کر رہے تھے نیچے
नहीं मीर साहब स्टूडेंट नाम याद है आपको? स्टूडेंट वही स्टूडेंट भाई चतुर ये देखें एक मिनट यार मीर साहब स्टूडेंट तो तेरी हिमायत में नहीं इधर भी बोल रहा है यार। ये जो बात सच्ची बात है वो यही है। स्टूडेंट नीचे लिख रहा था, मैंने उसके खुद कमेंट्स देखे हैं, हाँ, वो नीचे बिल्कुल। लिख रहा था कि स्टॉप इट प्लीज ताहिर स्टॉप इट। तो यार स्टूडेंट को कुछ ना कहें। तो ठीक है, वो तो चौधरी ठीक है, आप भी नसरुल्लाह, आप वो चौधरी नसरुल्लाह जो कहता था, जो कहता है कि मिर्जा मसरूर साहब से अंगूठी लेके आया हुआ है, इसलिए उसके पास जी लाइसेंस है गालियां देने का। वो चौधरी नसरुल्लाह जो कहता है मौलवी खुशियां मना रहा वड़ैच था। जो है, मौलवी वड़ैच की औकात क्या है, ये तो कब्रें छोड़ के भागे हुए हैं। वो चौधरी नसरुल्लाह जी अहमदी जमाते अहमदिया से जिसका ताल्लुक है, वो कहता है साडे चाचे बाबे मर गए ने, इन्हां दी मां दी ऐसी दी तैसी, मेरे कोले मिर्जा मसरूर साहब दी अंगूठी है, मैं ताहिर दी मां भैन इक कर देंगा। और उन्हें कीती और उन्हें करवाई। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰੌਡ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਪੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਪੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਅੰਗੂਠੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਅੰਗੂਠੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਨਸਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਅੰਗੂਠੀ ਹੋਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੀ, ਉਹ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸਰੂਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨੇ ਆ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜਨੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। नहीं यह गल नहीं है उम्मे बाजी, यह गल नहीं। जी। तोड़ो शाह साहब दी अंगूठी पोड़ो ते तोड़ो। ए बराड़ दे उत्ते स्टिकर लाओ, शाह साहब आपको जवाब देना होगा। और अगर शाह साहब आपने जवाब नहीं दिया तो अफजल वड़ाइच का कहर बन के, अजाब बन के टूटेगा अफजल वड़ाइच तुम्हारे पर शाह जी। बाज आ जा यार ये स्टूडेंट को पिक करो, स्टूडेंट को पिक करो। बाज आ जा शैतानियत, तो बाज आ जा, बाज आ जा। नहीं भाई सीधी सी बात है वड़ाइच साहब, जहां पर बात ये है कि अगर फर्ज करें शाह साहब की कहीं गलती है, शाह साहब ने आज तक, अच्छा मैं एक बात कहता हूँ, कसम खाकर यहाँ पर कोई बोल दे कि शाह साहब ने कभी भी उम्मे बाजी की हमायत में एक बात भी की हो कि यार उम्मे बाजी के साथ मैं गलत मैं मैं बताता हूँ टिवाना साहब, मैं बताता हूँ बात। बताए क्या कर रहा था मैं? सरकार बात आप ये कर होस्ट रहा हो था, खुदा की कसम, और आज आप जो है गर्म भी हो, मेरे हिसाब से आप ठंडा पियो। मैं सिर्फ स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ, मेरा प्यारा भाई है ऊपर आ गया है। स्टूडेंट भाई उस वक्त नीचे जितने दोस्त हंस रहे थे, कमेंट कर रहे थे, और ताहिर साहब ऊपर बैठ के होस्टिंग करके हंस रहे थे, उसके ऊपर मजाक बना रहे थे और गालियाँ निकलवा रहे थे। ये उम्मे रुबाब का मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करवाता हूँ। ये जो कहते हैं ना कि ये कादियानियों की सहूलतकार है या मिली हुई है, मैं बताता हूँ ये कादियानियों की सहूलतकार है या नहीं। उम्मे रुबाब, चले उम्मे से पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारी बराड़ के ऊपर आपकी मौजूदगी में कोई ऐसा मुसलमान आता जिसके साथ आपका मिजाज नहीं मिलता, आप फ़ौरन पैनल छोड़ के चले जाते। टिवाना साहब की बराड़ हो, मेरी बराड़ हो, हम आपकी रजामंदी की खातिर उस मुसलमान को उतार दिया करते थे। यार आप इस बराड़ को क्यों नहीं बंद करवा सके? आज जो कुछ वहाँ पे तमाशा लगा, वैसे तो कालें करके बराडें बंद करवा दी जाती हैं। ताहिर बराड़ बंद कर दो जी। अस्सलाम आज वो वालेकुम। बराड़ बंद क्यों ना हुई? जी मैं ये आपको उम्र रुबाब बताता वो हूँ। है, मैं बताता हूँ, ये उम्र स्टूडेंट मैंने साहब सुन ली आपको है बताता हूँ कि ये उम्र सरकार भाई, मैं रुबाब, सारी ये वो उम्र सारी रुबाब सुन है, ली है, सुन ली है सारी बात ये वो सुन ली उम्र है। रुबाब है जिसकी बराड़ के ऊपर कल मिर्ज़ा साहब को नंगी गालियां दी गई, माँ बहन की गालियां नंगी। इस उम्र रुबाब को बिठा के आज आप लोगों ने उस बंदे को गालियां निकलवाई जो आप लोगों की खातिर मुसलमानों से गालियां खाता रहा। बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम हुदा। यार सरकार साहब, आप तो एटलीस्ट गवार हो, जितनी दफ़ा भी ऊपर आप आए हो तो आपको माइक कौन दे रहा था उस वक्त? मैं एक दोस्त की जो ना उसके बेटे की वफ़ात हो गई थी, उसकी फोतगी पे था, तो मैंने जब देखा कि वहाँ पर चल रही हैं और आपके नाम के साथ जब कोई भी जो ना वो हो रहा था बद नज़मी समझ लें, गालियाँ, तो आपको मुझे ये बात बताएं किसने 3 दफ़ा माइक दिया? आप मुझे बताएं ज़रा सरकार साहब। जी सरकार इसीलिए साहब। दिया कि और तमाशा लगे। यार मीर साहब आपसे बात हो रही है। माइक यार बेशक माइक आप दे रहे थे, मेरा गिला इस पे नहीं है कि मुझे माइक क्यों नहीं दिया। मैं ये जी। कह रहा हूँ कि जब पहले ताहिर की बराड़ बंद करवा दी जाती थी, फोन करके ताहिर बराड़ तो बंद भाई कर दो, अभी एक लम्हे से पहले वो बराड़ बंद कर देता। मैं आपको ये बात, अगर आप जो मर्जी कहें, मैं आपको कहते हैं अभी मैंने नमाज पढ़ी, वजू में बैठा हूँ, मैंने क्योंकि अवे था, मैंने बताया मैं फोतगी पे था, फिर राजा साहब को
میں نے کال کی. اب اگر یقین کرنا کر لینا, میں نے راجہ صاحب کو کال کی, وہ بھی اپنے کسی کام میں مصروف تھے, وہ بھی ٹک ٹاک پہ نہیں تھے. میں نے ان کو کال کر کے کہا کہ یہ بند کریں آپ جا کے, میں ایک فوتگی میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک منٹ میں آپ کو یار اتار یہ- رہا ہوں اسٹوڈنٹ بھائی, میں آپ کو اتار رہا ہوں, رک جائیں. یہ راجہ صاحب بھی مصروف تھے, جب پورا کام شو ہو گیا ہے اسی وقت ہی راجہ صاحب نے آنا تھا. ہم آپ شریف بھائی ہو, اسٹوڈنٹ بھائی آپ پہ اعتبار کر لیتے ہیں, اس کے پیچھے پورا کردار راجہ عطاء المنان صاحب کا یار تھا. پورا سرکار یہ یار کردار. زیادتی ہے میر, نہ سرکار کر اگر یار, آپ نہ نے کر. اتارنا ہے نا, تو اب لاسٹ ٹائم میں آیا ہوں, اگر ابھی آپ نے اتارا نا تو پھر یہ نا آپ لوگ پھر خود ہی چلانا. ابھی میں آیا ہوں آپ کے حق میں, تو یہ میر صاحب اب 2 دفعہ انہوں نے مجھے ڈراپ کیا ہے, اسٹوڈنٹ سے اچھا یہی نہیں کرنا نہیں ہے. کوئی میر صاحب نہ اچھا, میر صاحب ڈراپ میں نہ کرو, معذرت میر صاحب چاہتا ہوں ڈراپ نہ کرو, بھائی, میں میر صاحب نہیں معذرت یہ ڈراپ نہ آپ کی کرو, اخلاق میر ہے صاحب یار, ڈراپ نہ آپ کرو. یہ دعوت دے رہے ہو. نہیں نہیں میں معذرت چاہتا ہوں. میر صاحب ڈراپ میرا نہ کرو, کوئی بھائی میر بات صاحب ہے, نہ مجھے ڈراپ بتا نہ دیں, کرو. افضل میر وڈائر میں صاحب, تیری کوئی بات ٹھڈی بتائیں, میں نے پکڑتا ہوں, کوئی نہ غلط کر کی یار. ہو آ کے. نہیں اسٹوڈنٹس میر میں تیری ٹھڈی پہ ہاتھ رکھتا ہوں, نہ کر یار. اسٹوڈنٹ بھائی میں معذرت چاہتا ہوں. ڈالیں. اب بات صرف یہ ہے کہ بھائی اس وقت انہوں نے آ کے, آپ کو کیسے لگ رہا تھا کہ براڈ ختم ہونے والی ہے, ہو سکتا ہے براڈ ابھی 2 گھنٹے اور چلے, لیکن انہوں نے آ کے وہ کہا کہ یار جو بھی ختم کروایا. ابھی آپ کا جو مطالبہ طاہر سے ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, ابھی میں اس کو کال کر کے بلاتا ہوں, آپ سے معذرت بھی کرے گا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ وہ ہمارا پلیٹ فارم نہیں یوز ہونا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں اس کو, میں بھی کال کرتا ہوں, اس کو بلاتا ہوں, آگے معذرت کرنی چاہیے اس کو, کہ ہمارا کیا لینا دینا ان کا ان ساری چیزوں سے. ٹھیک ہے ایک حد تک دیکھیں آپ بات کروا رہے ہو, اگر کوئی آ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کر رہے ہو, لیکن بہرحال گالی کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہے, ایٹ لیسٹ میں اس کو, یا ہم لوگ سپورٹ نہیں کرتے, وہ ہمیں دے یا کوئی جی ہمارے خلاف دے, سیدھی سی بات ہے. پہلی اب بات آپ تو کے یہ ہے, سامنے پہلی آپ کا جو مطالبہ ہے, میں اس کو کال کر کے بلاتا ہوں, آپ اس کو پک کریں. اب کریں گے پک اس ایک کو جو آپ منٹ نے ایک مطالبہ منٹ کیا ایک ہوا. فیضان صاحب مجھے ایک چھوٹا سا آنسر دینے دیں. یار سرکار صاحب مجھے میں آپ سے مخاطب ہوں. نہیں اچھا میر ایک اسٹوڈنٹ منٹ بھائی رک میں جا, آپ سے میر نہیں, رک جا, ایک میر ایک رک جا, چھوٹی جی گل, رک جا ایک چھوٹی جی یار, میں قسم اٹھا کے کہنا, مجھے جو تاثر آ رہا ہے, مجھے یہ تاثر آ رہا ہے کہ یہ جو طاہر نے کیا ہے نا, یہ جان بوجھ کے اس نے کیا ہے کہ تاکہ مرزا صاحب کو یہاں پہ جو کچھ بھی کہا جائے, یار یہ سرکار طاہر صاحب مجھے ایسے یار, لگتا ہے. آپ بھی باقی کرو آپ بات اپنے یار. جاری رکھیں. میر ایک منٹ. جی اسٹوڈنٹ بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو اتارا اس پہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ وہاں پہ مجھے بار بار انوائٹ کر رہے تھے, وہ آپ ہی تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میر بات کر رہا ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک سچائی ہے, مجھے معذرت نہیں چاہیے. میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ ام رباب نے یہاں پہ ایک بات کی ہے کہ طاہر نے مجھے, میں بتاتا ہوں وہ بعد میں, پہلی بات سن لیں. یہاں پر ام رباب ہوسٹ مجھے بات کرنے کا ہوسٹ تو خیر ملا ہوا ہے ان سے, ساروں سے. میر صاحب مجھے اجازت ہوگی میری 2 بات منٹ ہونے بات دینا, کرنے کی؟ میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, پھر آپ کو اس کو موقع بات دیتا کر ہوں. لینے دے, پھر آپ کریں. ایک ٹھیک. منٹ صرف. جی فیضان صاحب. ابھی یہاں پہ ایک ڈسکلیمر دیا ہے اسٹوڈنٹ صاحب ام رباب نے کہ طاہر نے ام رباب کو فون کر کے اپنی براڈ پہ بلا کے یہ کام جان بوجھ کے کروایا ہے. یہ سوال کریں اس طاہر سے, ایسا اس نے کیوں کیا؟ یار یہ طاہر اور ام صاحبہ وہ کہہ رہی ہیں, تو وہ آ کے اپنا جواب دے گا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. اگر وہ انڈیویجولی اس نے ان کو کال کیا, میرے پاس تو ان کا نمبر نہیں کو میں ان کو نہیں تو کال کیا انہوں لے, نے کیا. مطلب آپ کے ہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ایک احمدی یار غیر میری احمدی بات کو سنیں. بلا کے مسلمانوں کی تذلیل کروا رہا مجھے ہے, بات کر لینے پروپیگیٹ دیں, کر رہا ہے. اچھا میری ابھی بات سنیں. آپ کی میر دوسری مجھے طرف بات کرنے جائیں. کا موقع دیں پلیز. ایک منٹ پلیز میری بہن بات کرے, میری بہن بات کرے گی, کوئی بات, اسٹوڈنٹ چپ ہو جا, میری بہن بات کرے گی. جی اب سنیں کہ جگہ نے مجھے اور میری بیٹیوں کو ننگی گالیاں دی. ٹھیک ہے, جگہ جی جو عامر نذیر کے گروپ کا بندہ ہے, اس نے اتنی غلیظ گالیاں دی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. سدھو نے ننگی گالیاں دی, ان کے اور لوگ آئے انہوں نے ننگی گالیاں دی, مجھے براڈ بند کرنی پڑی. اگر طاہر نے مجھے کال کر کے کہا کہ باجی بہت افسوس ہوا ہے, آپ کو مطلب براڈ نہیں چلنے دے رہی, آپ میری براڈ پر آ جائیں, تو آپ کہیں گے کہ اس نے صورت کاری کی. یعنی آپ اپنے جتھے کے جتے بھیجے, گالیاں دلوائیں, بچوں کو ننگا کرے, غلیظ باتیں کرے, ٹھیک ہے, تہمتیں لگائے, اور پھر اگر ایک شخص جو ہے وہ آ کر یہ بات کہہ دیتا ہے کہ آپ کو براڈ بند کرنی پڑی, آپ آ جائیں, تو اس کا مطلب ہوا کہ طاہر نے صورت کاری کر دی. جی بتائی, آپ اس طاہر کے اوپر اٹیک ہے کہ تم نے اس کو اپنی لائیو کیوں دی, یہ لائیو لگائے گی تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. میرا کوئی موقف اور اور اس کو ہے. پلیٹ فارم دے گا
तो उसको करने नहीं देंगे। ये मेरा तरीका है मौकफ आपका? मेरा मौकफ सुन लें। मेरा जी जी मौकफ ये है कि ये ताहिर चाहता था कि मिर्जा साहब को यहाँ पे आप आके अपना, जाहिर है जब आप आएंगी तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि मिर्जा साहब को आप क्या समझती हैं। आपने बताया कि जमात के अंदर रेपिस्ट मौजूद हैं जो रेप कर रहे हैं यूके के अंदर, जिन्होंने रेप किया मलेशिया के अंदर, जिन्होंने रेप किया कनाडा के अंदर। और निदा नसर वाली बात जो आपने बयान की अभी थोड़ी देर पहले, मुझे ऐसा लगता है ताहिर ये चाहता था कि ऐसा हो। उसे नहीं था पता कि सरकार साहब जवाब देंगे, सरकार साहब इसके ऊपर ब्रॉड लगाएंगे। और मुझे लगता है कि ताहिर भी तंग आ चुका है जमात से। उसने एक्चुअली एक्सपोज करवाया जमात को, और मिर्जा साहब को जो कुछ ये सारा सेरा ताहिर के सर जाता है देखिए, और मैं ताहिर इनडायरेक्टली की राजा ताउल मनान साहब के सर भी जाता है। देखिए, मैं ताहिर की बहुत इज्जत करती हूँ, ठीक है। आज जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं ना, ये इन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी थी। पूछे किसकी? राजा मनान साहब की बेटी की। और उन्होंने कहा था कि अपनी ब्रॉड लगाओ और यहाँ पर राजा को और इनको बताओ कि ये जो हुआ है जमात अहमदिया में आया है, ये कादियानी होने की वजह ये है कि इसने अपनी बेटी इसको दी है, ठीक है। ताहिर लेकिन के मैंने साथ नहीं लगाई। शादी एक ताहिर मिनट की एक मिनट किस एक मिनट है जी, जी जी मैंने नहीं लगाई। मैंने कहा नहीं, मुझे इस तरह की बात नहीं सरकार करनी। साहब ये नीचे कमेंट ऑफ जरा कर दो, अगर एक बात मिनट, करनी है तो नहीं तो एक इजाजत मिनट दे एक दो। मिनट स्टूडेंट भाई, उम्मे सरकार साहब ये बंद क्या कर बात दी कर कमेंट रही हैं? यार। ये दोबारा मैंने जरा कहा explain कि जब 5-7 जी, माह जी। पहले की बात है और ताहिर जो था ये जफरुल्लाह शाह साहब की ब्रॉड पर गया कि मुझे अकायद समझाएं, मैं ये चीज समझना चाहता हूँ। उसके बाद ये मुसलमान हो गया, वो जी, जी। जमात अहमदिया में चला गया, ठीक हो अच्छा। गया। उसके जी, जी। ऊपर काफी ब्रॉडें लगती थी। मुझे लोगों ने अपना तस्वीरें भेजी, यही जमात, ये जो हमारे मुसलमान मुजाहिदीन, जी ठीक जी है, नाम नेहाद सो कॉल्ड, ठीक है, अच्छा। ये जिसे हम कहते हैं वो बनिए खत्म जी, जी। नबूवत, ठीक हो क्या। जी 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 जी। इन्होंने क्या किया कि मुझे तस्वीरें भेजी राजा ताउल इस मनान की उमेर बेटी की। को, इनकी राजा मदार की बेटी की, ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा। और उन्होंने कहा ठीक कि है। उमेर बाब यहाँ पर लाइव लगाओ और यहाँ पर ये बात हम तुम्हें प्रूफ दे रहे हैं। इन्होंने मुझे मैसेजेस प्रूफ और साथ में ताहिर की ये तो तस्वीर से लगाई, इसके अलावा इन्होंने कहा यहाँ ठीक पर है। लगाओ और यहाँ पर बताओ कि ये वजह है इसके मतलब कादियानी होने की। मैंने यानी कि लगाई राजा ताउल नहीं। मनान साहब की बेटी के साथ ताहिर की शादी होने वाली है। ओ मीर मीर साहब साहब, इम्पोर्टेंट वो नहीं है, साहब, ये इम्पोर्टेंट ये है कि एक मिनट कितने टिवाना कमीने हैं साहब, ये लोग। टिवाना मैंने साहब, नहीं ये- लगाई। यार एक मिनट मैंने मीर नहीं साहब, ये लगाई। गलाजत ना करो, आज आप ये अगर गलाजत मैं ना करो। उसको इज्जत ओ देती यार, हूँ या उम्मे साहबा एहतराम बता देती रही हैं, हूँ मैं इस क्या वजह करूं? से उम्मे साहिबा ने कि नहीं ये तुम कहा। लोगों की वजह से अब वो मैं बंदे आपको ने ये बता दूं अपना बात, दीन छोड़ा है। आपकी बेटी तुम के ऊपर लोगों आपको तुम शर्म नहीं एक आ जिम्मेदार रही? हो। मिनट एक मिनट, उम्मे साहबा ये मैंने आपको बात की है, नहीं, ये बेटी वाली है ये। मीर आपको शर्म नहीं आ रही? ओ यार मैं कर उम्मे साहबा मैंने नहीं, आपको आपको बात शर्म की है, नहीं ये आ रही? ताहिर आपकी के साथ बेटियां ताउल नहीं है, मनान साहब बहनें की नहीं बेटी की शादी। अच्छा ये मैंने मीर कहा है आपको। मीर बहन बेटी मीर नहीं है? मीर स्टूडेंट को बात करने दो उम्मे साहबा के साथ। यार मैं नहीं, म्यूट लगा आपकी लेता बहन हूं। बेटी नहीं है मीर, ऐसे तुम जो नहीं, protest इनकी कर कोई रहे हो। बहन बेटी नहीं है। ये दूसरों सिर्फ- को जो मर्जी नहीं, कहे। ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इतना गिरा हुआ बातें कर रहा है। वो बात कुछ कर रही है, वो आगे से देखो बात क्या कर रहा है। हमारे चलें हमें ठीक नहीं है, लोग भेजते। एक मिनट ये तो एक स्टूडेंट एक मिनट बात को सरकार, हल करने की तरफ जाते हैं ना, 3 दिन पहले मेरी बात को सुन दूर लो, करो। सरकार मेरी बात सुन लो। 3 दिन मुझे पहले सरकार जफरुल्लाह ये शाह साहब बताओ, ने- मस्जिद में चले जाए तब हम महफूज रही, लाइव पे आ जाए हम महफूज रही, आप लोगों को घरों में बुला ले हम महफूज रही, ठीक है। क्यों महफूज हैं, बताइए महफूज जी, हैं आप क्यों? बिल्कुल यहाँ पे। कैसे नहीं, मैं मुझे ये बताएं। राहील पे अटैक हुआ है, अब्बासी के ऊपर जो है हाथ नहीं, डाला है। टिवाना साहब, अगर इस एक्ट के ऊपर आप सब मुसलमान को बोलें कि नौजुबिल्ला मुसलमान सारे ऐसे हैं, तो ये मीर तुम ये प्रोग्राम करवा रहे हो। आप हजारों लाखों ये आप एग्जांपल्स देखोगे क्या हो रहा है। अब तुम मुझे फिर डांटोगे दोबारा रिपीट करने पे। उम्मे साहबा ने खुद बात की है कि नहीं, इनके उम्मे पास साहबा ने proof ये था कहा, उम्मे कि साहबा ने ये राजा नहीं कहा। ताउल मनान की बेटी की नहीं कहा तस्वीरें उन्होंने, इनके नहीं पास कहा। हैं। ताहिर की यार, शादी तुम लोग होने तो वाली थी, खुद- खुदा की तुम कसम लोग उन्होंने। तो खुद ओ शौक यार शूटर की अभी बेटियों की तस्वीरें ओ बांटते प्यारे थे। भाई ये अभी बैठ के खुद वो बता रही है, यार मैंने तुम कहा लोग बात शॉप की है। शूटर की बेटियों की तस्वीरें बांटते थे अहमदियों ओ को। भाई वो आज तो तुम लोग आपके यहाँ पर आपके धुले हुए- लोगों ने लगाई थी ना, ये जो राजा आप ताउल बांटते मनान थे, की आप बेटी की लोग बात हो बांटते रही थे। है। शाह ये तो उम्मे शूटर साहबा हमारा कर रही कितना हैं, मुखालिफ है। मैंने की हमारा उम्मे साहबा यार, ने म्यूट करे जी। यार एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। मैं दोनों स्टूडेंट यार मैं ये कह रहा हूं कि मैं रुक जाओ, मुखालिफ थी ना, मुझे ये मैंने प्रोवाइड दोनों को किया गया कि इस दोनों को प्लेटफॉर्म म्यूट पे ये किया करो, है, दोनों को म्यूट किया है। एक मिनट रुक जाएं, सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाएं, थोड़ा ठंडे हो जाएं। उम्मे को बाप साहिब
प्लीज मुझे म्यूट मैंने लगाए। एक को ना मिनट म्यूट लगाए, अच्छा उम्मे साहबा को ना म्यूट अच्छा लगाए। बात तो सुने ना, बात तो सुने। उम्मे साहिबा, क्या ताहिर ने आपको तस्वीरें भेजी थी या नहीं भेजी थी? बताएं। किसकी? जो आप कह रही हैं राजा अताउल मनान की बेटी की। देखिए, ये जो हमारे मुजाहिदीन हैं उन्होंने भेजी थी तस्वीरें, और उन्होंने कहा था कि अपनी ब्रॉड लगाओ और ताहिर की वजह बताओ कि ये वजह है पीछे, और हम मैसेजेस भी भेजे उन्होंने, और कि भी हम आपको ये फायदे देंगे, बेनिफिट देंगे, तो ये यहाँ पर लगाओ, और राजा मनान का और इसके खिलाफ अपना ताहिर की। मैंने कहा नो, ठीक मैं नहीं है, करूंगी, ठीक है, और मैंने नहीं किया ठीक है। जी। अब देखो, हालांकि सरकार मैं साहब, जवाब सरकार है कि साहब, क्या ये मेरे अकायद उनके साथ सरकार मिलते हैं? साहब, ये नहीं, एक लेकिन मिनट ना। उनकी इज्जत भी मुझे अजीज थी, तो ओके। उन्होंने यानी तो एक हमारी तो मुसलमान सरकार बहर होने, करते क्या हो? एक मुसलमान होने का आपने सरकार सबूत पैटर्न दिया। है। एक मिनट, एक नहीं, मिनट। नहीं, यार को सरकार बात मुसलमान करने होने देंगे का नहीं करने देंगे? आपने अपना किरदार पेश किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, हालांकि आपके पास राजा साहब की बेटी की तस्वीरें थी, आप चाहती उनकी बातों में मेरे आके पास वो अभी proof भी लगाओ। है, वो मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो तस्वीरें ठीक है, मुझे ठीक है। भेजी गई, जो बात तो मुझे करने दो ना, मैसेजेस सरकार किए गए, वो मेरे हाँ, पास यार, मौजूद है। यार बस स्टूडेंट ठीक है, आप ठीक है। बोलो एक मिनट। चले उम्मे आप साहिबा चलें। स्टूडेंट को तो बोलने मेरी दें, क्या? मुखालफत ये अच्छा, की गई चलें, कि उम्मे साहिबा मैं एक के मिनट दे दें। मुताबिक नहीं चलती, मेरे नजदीक अच्छा, एक मिनट मेरा दे कोई दें। दुश्मन भी है तो उसकी इज्जत भी मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। एक मिनट दे दें, अब एक मिनट दे दें। अच्छा सरकार साहब, इधर उधर की बात नहीं मैं करूंगा। अफजल वड़ैच साहब बैठे हैं, उनकी बेटियां हमारी बहनें हैं, उनके बारे में किसने क्या जबान इस्तेमाल की उनकी बेटियों के बारे में? अफजल वड़ैच साहब सामने साहब बैठे को हुए बीच हैं। में ड्रैग ना करो। मीर अफजल साहब को आपको ड्रैग नहीं ना मैं करो। मुखातिब कर रहा। यहाँ पे मीर बात साहब आप अफजल म्यूट साहब की रखें। बेटियों की नहीं हो रही। दीवाना साहब अफजल साहब, नहीं 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 नहीं, सरकार साहब बिल्कुल यार, नहीं, म्यूट नहीं, रखें। अफजल साहब के साथ भी ज्यादती हुई और बात हम करेंगे मीर भाई। माए नहीं बहनें नहीं, तो बेशक सबकी करनी साझी चाहिए, होती हैं। नहीं, लेकिन आप यहाँ इधर पे जो आप इधर जो इंसानियत के तस्वीरें आई चैंपियन हैं वो बैठे तो हो। अताउल मनान की बेटी की नहीं, आई है सुनो ना। सुनो, आप म्यूट लगाओ मीर, म्यूट लगाओ, हौसला रखो। ये मैं तुम्हें फैक्ट एंड फिगर दिखाऊंगा। शीशे में अगर अपनी चेहरा अपना बुरा नजर आ रहा है तो शीशे का कसूर नहीं है, चेहरे का कसूर है। तो प्लीज अब जो ना इसको जरा एडजस्ट करो और इसको डाइजेस्ट करना सीखो। अफजल वड़ैच साहब सामने बैठे हुए हैं, इनकी बेटियों के बारे में और ताहिर के साथ लिंक करने वाले कौन थे तुम लोगों के? वो लोग आज भी तुम लोगों की ब्रॉड्स पे बैठे होते हैं। वहां पर तुमने कितनी गैरत दिखाई, अफजल साहब के हक में कितनी बात तुमने की। आज तुम उम्मे साहिबा ने एक ऐसा कमेंट किया जिसका लेना देना भी नहीं है, वो उन्होंने अपना एक बताया कि मेरे पास बहुत सारे लोगों स्टूडेंट की। तो इसके बदले अफजल साहब ने उम्मे की हिमायत में कितनी बात की, ये भी तो देखना। मैं यही कह रहा हूं ना कि यहाँ पर हमें आप लोग, हमारा लेना देना कोई नहीं। हम तो आपके पास, दीवाना साहब के पास, सरकार साहब के साथ दोस्ती में आते हैं। हमारा इनके साथ एक म्यूचुअल ये है कि यार ये रिस्पेक्ट से मेरा बात करते सवाल हैं। ये है कि यार जमात आपसे बात ने कौन राजा कर साहब रहा की है? बेटी की तस्वीरें मीर साहब आपको क्यों की? मुखातिब कौन कर रहा है? है अच्छी अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं। जी जी, देखिए करें स्टूडेंट भाई, जारी रखें। मेरे कहने का मैं मकसद इनको सिर्फ ये मुखातिब नहीं था कर रहा। कि दुश्मनी में ये इतना गिर जाती है, एक मिनट दे दें। ठीक उम्मे है, साहिबा, एक लेकिन मिनट दे मैं दें। अगर इनके म्यार पे पूरा नहीं उतरती तो ये मुझे जलील करेगी, इसका ये मतलब है? मतलब ये है कि वो सरकार ने कहा था कि आपने गालियां दी हैं, बिल्कुल ठीक दी हैं, लेकिन आपने प्लेटफॉर्म गलत चूज किया। तो मैं भी आपको ये कहता हूं कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे आके गालियां दें, इनको कोई इतराज नहीं है। आप हमारे प्लेटफॉर्म में आके बराए करम इनको गालियां ना दे, क्योंकि इनकी लो गैरत जी, ना उस वक्त जाग जाती है। यार आप उम्मे साहिबा को गालीबाज कह रहे हैं, खुदा का खौफ करें। आप ये तरगीब दे रहे हैं कि ये गालियां दें। ये उसने कहा है, ये और खुदा सरकार ने का कहा है। खौफ करें यार, सरकार खुदा ने का कहा है। खौफ करें, देखिए, खुदा मेरी का बात खौफ सुने। करें, स्टूडेंट भाई, खुदा हुआ का इस तरह खौफ था, करें। मेरी स्टूडेंट बात साहब, सुने। खुदा का खौफ मैंने करें। अपनी लाइव ऑन की। स्टूडेंट साहब, खुदा का मेरी खौफ बात सुने, करें, प्लीज। खुदा का खौफ प्लीज करें। मेरी बात आप ये सुन लें। तरगीब दे रहे हैं कि गालियां दें। मेरी बात यार सुन लें। सरकार ने कहा है कि उस ब्रोड पे गालियां स्टूडेंट क्यों भाई दी हैं? मेरी बात सुन लें। मेरी ओ ब्रोड भाई, पे देते खुदा आप। का स्टूडेंट भाई खौफ मेरी करें, बात आप तो सुन लें, तरगीब दे रहे हैं प्लीज। ना। स्टूडेंट भाई चलो। मेरी बात पूरी होने दें। देखिए, मैंने आपसे ये अर्ज की कि मैंने अपनी लाइव लगाई, वहां पर मुझे गंदी गालियां दी गई। वहां पर जग्गा और सिद्धू और इसके साथ कुछ और लोग आए, उन्होंने बहुत ही गलाजत बकी, जिस पे मैंने अपनी लाइव बंद कर दी। उसके बाद ताहिर ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा था, बड़ा अफसोस हुआ है, मैं ब्रॉड लगाता हूं, आपकी ब्रॉड तो चलने नहीं दी जा रही, आप जो बात करना चाहती है वहां पर आकर कर ले। ये बात हुई है, ठीक है। मेरे ना तो सुन रहे हो ताहिर, सुन रहे हो अपना स्टूडेंट, सुन रहे हो ताहिर ने क्या यार, नहीं, किया? वो फोतगी पे नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, फोतगी पे एक फोतगी पे बात नहीं सुन करता हूं, रहे। आप चार बंदे बोलना शुरू हो जाते हो। उम्मे साहिबा की ब्रॉड पर आके ब्लू फिल्में चलाने वाले आज आप लोगों के
पैनलों में बैठे होते हैं, कितने लोगों ने वो लगाई है स्टूडेंट ये बरौलत ज्यादती के कर रहे जी हो। ओए वो आपके स्टूडेंट, थे। जी ओए वो शेर आपके का थे, बच्चा है इरफान जट साहब थे जिन्होंने चलाई नहीं, थी, यही ठीक है। आप वो उम्मे नीदा साहब नसर के मीर साथ साहब जनाब चलाई किसी है। मुसलमान ने नहीं था किया। हाँ, नीदा हाँ, नसर अब के आप साथ अब वो आप मुसलमान नहीं था, वो आपका ही अहमदी था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उम्मे साहिबा को पता है, उम्मे साहिबा को पता है, किधर जाएगा इनको जी उम्मे खुल के साहिबा को बोले। पता है वो फिल्में किसने चलाई थी इनकी ब्रॉड पे आके। आप उनसे पूछें जो जिनके साथ नहीं ये उनकी जुल्म जुबानी हुआ है। मौजूद है, कितने उनकी कितने जुबानी लोगों मौजूद है, ने रिकॉर्डिंग पेश कर सकते हैं। इमरान जो इसका है ना आबिद नजीर के साथ है, इमरान लड़का उसका मेरा ख्याल कोई रिलेटिव है, उससे चलाई थी। देखे इल्जाम ना लगाए, इरफान जट ने नहीं चलाई थी। ये झूठ बोल रहे मेरी हैं सारे उसके बैठ साथ के। बात हो रही थी, मैंने खुद उसको बड़ा किया। इमरान जट तो है ही नहीं अच्छा, था, इरफान एक जट मिनट। वहाँ पे। तब दोनों गैरत रुक नहीं जाए जाती जरा, आप। ये जरा बिल्कुल दोनों मौका झूठ दे, है। मौका एक दे बहन मुझे, आलमे मुझे दीन मौका की दे। ब्रॉड पे आके ब्लू फिल्में चलाते हो, उस स्टूडेंट वक्त शर्म नहीं स्टूडेंट आती मीर आपको? साहब, ओ स्टूडेंट बात सुनो मेरी। आज आ गए हो आप ये हमें सिखाने के लिए मीर साहब। ओके यार सुन तो लो, बात निकलेगी स्टूडेंट तो साहब बहुत सुन तो समझ लो जाएगी। बात आप यार। गलत कर रहे हो फैजान साहब, आप शुरू दिन से गलत कर रहे हो। आपको चाहिए था कि वो कादियानी और अहमदी हजरात जिन्होंने समेत स्टूडेंट साहब को और राजा अताल मनान साहब को अलिफ से लेके या तक तमाम हरूफ तहजी से जो जो पुकार रखा है ना, आपको चाहिए था आप उनको मौका देते। हाँ तब आके स्टूडेंट भाई हमें समझाते और खुद नहीं, ये मुझे कहते कि नहीं मेरी नहीं नहीं क्या नहीं नहीं औकात ऐसा है? नहीं है। और मुझे नहीं तो रुके ना भाई, गालियां मैं पड़े, फजान जो साहब, और मर्जी भाई मैं पड़े। फजान साहब, किसी की कोई औकात नहीं है, छोड़े इस बात को, वो बात गुजर गई है। लेकिन आप जो उसूल बना रहे हैं ना स्टूडेंट साहब, उस उसूल के तहत उन तमाम लोगों को, मलक अबान को मौका दिया जाए, ताहिर उठवाल को मौका दिया जाए, अली अकबर को मौका दिया जाए, उन वो जितने भी हैं उन सबको मौका दिया जाए। फजान साहब की ब्रॉड पे आए, आके वो जी भर के ना वो ये सारे मामलात करें, और फिर अफजल बड़ाइट सब ऊपर आए आके कहें नहीं 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 यार बंद करो यार, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तो ये उसूल आप बना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप ये तरगीब दे रहे हैं, तो हम भी फिर पता क्या करें, हम ये कहते हैं रठवाल साहब इस तरह करें, आपने प्लेटफॉर्म गलत चुना है। आप अपनी ब्रॉड पे जाएं और राजा अताल मुनान साहब पे दिल खोल के जो करना है करें। आप ये उसूल बना रहे हैं यार, कब शर्म आएगी आपको? अब शर्म नहीं आ आपने रही बात कर ली ना, अब जवाब सुन ले। कल भी आपने गलत यार? बयानी की इस थी तो बात बाद में में भी माफी मांगी थी और आपने। पीछे टूट जाओ, उस तो पीछे टूट जाओ। नहीं, अब ये आपने उसूल बात बना रहे करनी हैं है तो आप नहीं, ये तो उसूल बना रहे हैं। दूसरों की बात नहीं सुननी आपने, सुनाए अपनी बात सुनाए लानी है। चलें ऐसा सुनाए, करते जरा हैं उसमें स्टूडेंट सुनाए। साहब, नहीं, मैं नहीं, ऐसा जरा करता हूँ। फजान साहब जरा इनको कार लेने दे। जी जी स्टूडेंट साहब करें। एक अहमदी बैठा हुआ है, बाकी सारे आप लोग गैर अहमदी है, तो हौसला रखो, टाइम तो दो ना बात करने का। ये कल भी इन्होंने इस तरह की गीबत और सुनी सुनाई बात पे एक बात की थी, तो बाद में फिर माफी मांगनी पड़ी थी। यार ठीक है, परसों आपने इल्जाम लगाए थे, हाँ जी, उससे हाँ जी, पहले बस आपने ये इससे ज्यादा इल्जाम लगाए थे। मैं आपको खुश हर हो चीज प्रूफ के साथ पेश करूंगा, प्रूफ तो के भाई साथ। मैं भी प्रूफ के साथ, आप प्रूफ की बात करते हैं, और भाई स्टूडेंट भाई आप प्रूफ की बात करते हैं। कल आप कल की ब्रॉड देख लीजिएगा। नहीं जीत सकते मुझसे, स्टूडेंट साहब, अल्फाजों में नहीं जीत सकते स्टूडेंट आप। साहब, ये तो आपका जोम है, आपका पुराना वतीरा है, आपका जिथे जोम है, फंसो उथे ये डायलॉग बाजी शुरू आपका कर दो। जोम है ते तुसी आप जिथे झूठ फसो बोलते हो, उथे शरीफ आके स्कल उत्ते गल क्रचर करो। साहब। नहीं मैं ते फुटगी ते सा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਟਕੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਤਾਹਿਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਇਟ ਡੋਨਟ ਡੂ ਇਟ। ਇਹ ਫੋਟਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ नकल आलमे उतार दीन रहा जे, है। लेकिन ये आप जो मैसेज के उसूल बना ऊपर रहे हैं ये देख लो जी। स्टूडेंट साहब आप बस थते हो गए हो, आप एक उसूल बना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी के मामले नहीं बोले, अभी तक हम किसी के मामले में नहीं बोले। सबको पता है स्टूडेंट साहब अभी तक किसी के उतारने मामले में वाले नहीं को बोले। क्या कहते हैं, स्टूडेंट साहब मुझे ये कहने की कितना जरूरत मुश्किल नहीं है। काम है हाँ जी, हाँ जी। अथवाल ब्रांड को यहाँ पे बिठाना। स्टूडेंट साहब मियाँ फेवरेट 49 को ब्रॉड पे बिठा के अलिफ से लेके या तक गालियां निकलवाना किसी को, ये कितना मुश्किल काम है, कितना खोखा काम है। सीना चीर के खड़े हो गए, ये गालियां पढ़वा के उस फिजान को जिसके पास आके अपना मुकदमा लड़ते थे उसको मिलके गालियां पढ़वाते हो, गालियां पढ़वा के फिर आके मीठे मीठे बन के कहते हो मैं भी उसको फोन करता हूं माजरत करेगा, और उस वेले फोन भज गया सी ਤੁਹਾਡਾ, इससे पहले माजरत क्यों नहीं हुई? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਿਆ ਜੇ ये उसूल आप नहीं बस ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ शीशे तोड़ सटे क्योंकि आप अपना चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सके। अभी तो आपसे बात शुरू हुई है, आप यहाँ पे उमर बाप को आके ये तरकीब दे रहे हैं, तू गालियां काट लेकिन किसी और की ब्रॉड से काट। ये मलक अवान साहब नीचे आए हैं, उठाओ इनको, कितना का मुश्किल काम है। अताउल मनान साहब की जितनी इज्जत है उससे बढ़ के स्टूडेंट साहब जरा हौसला करें, स्टूडेंट साहब जरा हौसला करें। अताउल मनान साहब की जितनी इज्जत है उससे बढ़ के फजान साहब की इज्जत है। हम अताउल मनान साहब की इज्जत का पास करें। इन जो अहमदी दोस्त है आपकी जमात के दोस्त हैं, चंदा देने वाले लोग हैं, हम इनको अपनी ब्रॉड पे जगह ना दे। नहीं यार अताउल मनान साहब इन्हों का अपना मामला है, घर जाके सॉल्व करन,
ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੂਲ पे सेट कर दे हो भी उमर बाप आपको वहां गालियां नहीं देनी चाहिए थी, यहाँ आके गालियां देती, होश में हो? अच्छा चलो जी सरकार फिलहाल साहब साहब करो गल, सरकार साहब ਇਹਨਾਂ ਦੇ मेरी ਸ਼ੀਸ਼ੇ गल ਭੱਜ दे ਗਏ विच ना जे। सरकार साहब हुन मेरी उमेर गल दे बाप विच ना किसी बोले को गाली नहीं एक देनी मिनट उम्मे चाहती साहिबा ना उम्मे अपनी साहिबा ब्रॉड उम्मे पर, साहिबा एक मिनट ठहर जाएं, ना इन्होंने मुझे अपनी मुखातब ब्रॉड किया पर है, मुझे ना बात किसी करने दें उम्मे और की साहिबा। ब्रॉड के ऊपर। उमेर बाप सरकार बिल्कुल साहब ऐसा नहीं चाहती, उसको मजबूर किया सरकार साहब जाता बात है। तो करने दो ना यार, अब सरकार भाई हाँ बात करो, लेकिन उम्र रुबाब की बात भी सुनो ना। उसको ताहिर ने बुलाया था अपनी ब्राड पे, अच्छा इसका सुन ले हिसाब सुन कौन ले लेगा? सुन लो सुन लो सुन लो। अच्छा ये जो स्कल क्रशर साहब है ना, इनको सिर्फ बोलने का पता, सुनने की इनके पास हिस्स नहीं है। मैंने जो बात कही थी इन्होंने आधी सुनी। ये वो बंदा आधी बात सुनता है, पूरी समझता है और डबल रिएक्ट करता है। आधी बात सुनने का हाल यही होता है कि इंसान को बाद में माफियां मांगनी पड़ती हैं। मैंने कहा था कि सरकार ने जब रोड लगाई थी, सरकार ने आते ही कहा था कि अगर आपने ये सब करना था, गालियां भी देनी थी, तो उनकी ब्रोड क्यों चूज की? अपनी ब्रोड को ही लगा के उस ब्रोड पर आप ये हरकत करते आप। ये सरकार के अल्फाज हैं, ये मेरे नहीं थे। अगर मैंने वो रिपीट कर दिए तो मेरे ऊपर आ गए हो। आपको समझ नहीं, आप बात क्या कर रहे हो। सिर्फ आपको माइक का जो है ना वो फोबिया है, माइक पकड़ते हो तो फिर बोली चले जाते हो, बोली चली जाते हो, अपनी तरफ गोल करी जाते हो। स्कल क्रशर साहब ये सरकार के अल्फाज जो है ना मैंने दोहराए थे कि सरकार ने ये बात कही थी कि गालियों से मसला नहीं है, जिस ब्रोड पे बात की वहां नहीं करनी चाहिए थी। तो आप मेरे ऊपर डाली जा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको झूठ बोलने की आदत है। 4 दफा मैंने आपको झूठा प्रूफ किया पिछले 1 हफ्ते में, और विद प्रूफ किया है। वहां से आप भागे हुए हो। कल आप कह रहे थे मैं स्टूडेंट से बात ही नहीं करनी। भाई स्टूडेंट से बात करने के लिए हौसला चाहिए, सबूत चाहिए। आप मेरी नकल उतार रहे थे, आप और कर भी क्या सकते हो? झूठा इंसान क्या करेगा? जो आप कर रहे थे यही करेगा। आगे बात जब बन सकी ना, हेर फेर से कुत्ते लड़ा दिए जंगल के शेर से। अब तो ये वो जंगल का शेर था ना आपके ऊपर फिजान, होता है। अब मैं किस किस को कहूँ? जंगल का वो अली शेर था ना भाई फिजान, अली भाई वो किस अपने किस आप को को क्या शेर क्या कहा कहूँ? गया है। अली भाई अपने आप को शेर कहा गया, वो या इस वजह आपको से चीमा साहब अपने बीच में आप को मुखातिब नहीं किया, ये हमारी दो देखें भाइयों की अपने आप बात को हो रही ठीक शेर है। कहा गया, है, शेर ठीक है कहा स्टूडेंट गया। भाई, ठीक है स्टूडेंट भाई, ठीक है, इख्तलाफ अपनी जगह। आपने मुझ पे इल्जाम लगा दिए, सब कुछ कर दिया आपके नैरेटिव के मुताबिक, जिसकी जितनी मुखालफत हो रहा है उतना तगड़ा होता है। आपने तो चले मुझे तगड़ा साबित कर दिया, जज़ाकल्लाह। लेकिन स्टूडेंट भाई आपने आगे पीछे की 1000 बातें की, लेकिन जो उसूल आपने मरतब किया है उस उसूल पे भी मेरे सवाल का जवाब दिया क्या? नहीं, आप फजान असूल को गलत मरतब अल्लाह, कर रहे अब हो। मेरी बात मैंने बोल रहे हैं सरकार ओ की भाई, बात को कोट किया सुना है। क्यों आपको आग क्यों अली लग रही है? साहब, जरा सबर, अली जरा साहब, सुना। अली मीर साहब, साहब मैं जरा मुझे आपके एक बात करने अली जबान लेने अली रुके। मीर 10 भाई एक सेकंड मिनट ले लूं, रुके, मीर 10 भाई एक सेकंड। मिनट रुके, मुझे इस ये बात शेर करने का दो, उसके बाद बताना है आप ना, ये कीजिएगा। कैसे शेर है इनके अपने अहमदी के मुंह, इनके और अपने नहीं अहमदी के छोड़े मुंह, छोड़े यार, चौधरी नहीं नहीं ना नसरुल्लाह के मुंह में। यार, नहीं ना चौधरी मीर भाई, खुदा नहीं रो, खुदा मीर के भाई लिए नहीं, कोई मीर भाई कंट्रोल नहीं। कर यार। अली भाई क्या कर रहे हैं यार? मीर भाई के खुद ठंडे, स्टूडेंट भाई टिवाना ठंडे। भाई चले, मैं आराम से एक प्लीज बात करता हूँ आपके ठंडा साथ। हो जाओ। बहुत टिवाना भाई आप बैठे हुए हैं यहाँ, चलें आपकी कहने में बिल्कुल आराम से बात। मुझे ये बताएं टिवाना भाई, मुझे ये बताएं, अफजल बड़ाई साहब बैठे हैं, बड़ाई साहब, टिवाना भाई, ये काम कितना मुश्किल काम है कि अताउल मनान साहब को या स्टूडेंट साहब को या जरीउल्लाह साहब को, ये जो बाकी इनके जितने लोग हैं, इनमें जो आपस में मुखालफत है किससे ढकी छुपी है? अगर ये कैश करना हो तो ये कितना मुश्किल काम है कि किसी एक दड़े को, किसी एक ग्रुप को यहाँ पे बिठा के तो इनके ऊपर से लेके नीचे तक सारे मामलात सीधे करा दें। और ये कितना मुश्किल काम है टिवाना भाई। टिवाना भाई ये उसूल सेट हो रहा है ना, माइक खोले, मुझे जवाब दें इस बात का। नहीं यार, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। तो यही तो बात स्टूडेंट भाई के सामने रख रहे हैं कि उसने जो किया उस पे पर्दा ना डालें। उम्मे यार साहिबा टिवाना खुद ये भाई, मैं बात कर रही है। आपको जरा टिवाना बात भाई, तो मैं मुकम्मल आपको होने देना मुखातिब होता स्टूडेंट हूँ। भाई, जरा टिवाना बात भाई, तो मुकम्मल होने देना स्टूडेंट यार भाई, अब हो मुझे गई ना मुखातिब होने बात, कोई अब बात आप नहीं। मुझे जरा टिवाना साहब से एक बात करने जरा देना। थोड़ा सा हौसला रखे ना, थोड़ा सा हौसला रखें, कुछ नहीं यार होता। आप साथ हैं, मैं अकेला हूँ, तो इतना टाइम तो दो ना रिस्पॉन्स यार करने का। आपसे तो कोई बात नहीं कर रहा, किसने बात की आपसे तो कोई मुखातिब नहीं हो रहा। अच्छा आप तो अकेले भाई साहब, काबिल बोली जा रहे मेरी हैं। नकलें उतार रहे थे, आप नकलें उतार रहे थे, लो, मैसेज लिखे हुए पे अच्छा नकलें जी, उतार रहे थे, अब कह रहे मैं आपसे बात नहीं कर रहा। यार फिर वही, और भाई मुझसे बात करें, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, मुझे मुखातिब करें, क्योंकि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप जो उसूल मरतब कर रहे हैं स्टूडेंट भाई, ये उसूल आपको महंगा पड़ेगा। अभी कह रहे मैं आपसे बात नहीं कर रहा, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो फिर बीच में? यार भाई जी तुसी कन्ना दोवां च पा लो ताकि तुहानू आवाज पूरी आवे। मैं तुहानू आख्या मुझे मुखातिब कर ले। और स्टूडेंट साहब मुझे, यार बदतमीजी क्या, दोनों कानों में आप वो डाल लें एयरबड्स जो आपके हैं। नहीं बदतमीजी आप कर लो, मैं फिर भी नहीं करूंगा। मेरा असूल है कि कोई बात बदतमीजी भी करेगा तो मैं इंशाल्लाह आप तो खामखा गुस्सा कर रहे हैं ये स्टूडेंट थोड़ी भाई। देर पहले जो कुत्ता बोला था वो आपने अताउल मनान साहब को बोला था या किसी और को बोला था? नहीं छोड़ो बताओ ना, नहीं बताओ ना मुझे। स्टूडेंट भाई के तो घर में आप आईने नहीं है, आपसे नहीं आपसे है। तो बात ही नहीं हो रही।
मैंने तो स्टूडेंट किसी को भाई नहीं जरा, बोला। अच्छा स्टूडेंट साहब जरा सुने ना, ये जो अपने आप उसूल, को मुझे बोला सिर्फ था। इतनी बात बता दें, क्या फैजान साहब को भी ये इजाजत है कि इतने बंदे बिठा के राजा साहब के जितने मुखालफीन हैं जमात अहमदिया के लोग, उनको प्लेटफॉर्म उस तरह दिया जाए जिस तरह उम्मे साहिबा को प्रोवाइड किया गया है, और वो राजा साहब के बारे में दिल खोल के उनका जो जो कुछ है वो निकाल के बाहर रख दें? ये उसूल आपको मंजूर है? अच्छा चले हम म्यूट लगाएं। बात सिर्फ ये है कि बताएं। जो ये स्कल क्रशर साहब जो हवा में बात कर रहे हैं ना, इनको अब मैंने आके सबसे पहले जिस चीज को कंडम किया है कि नहीं होना चाहिए, टिवाना साहब आप गवाह रहना और सरकार साहब आप भी गवाह रहना, इधर अगर मैं बैठा हुआ हूं ना तो इस चीज को कंडेम करके बैठा हुआ हूं। इस भाई को पता ही नहीं लग रहा, ये एक जो और पहले भाई से इसी इन्होंने तरह हम प्लान- भी कंडेम करेंगे बाद यार में, टिवाना साहब बिठा इसको के म्यूट सारा लगाओ कुछ यार। करवा के बाद में कंडेम टिवाना कर साहब देंगे म्यूट हम। लगाएं यार, चलें, इनको जरा बात। मैं जवाब देता हूँ, मीर साहब मैं जवाब देता हूँ। स्टूडेंट साहब ठीक है, ऐसा करेंगे, कल टिवाना साहब मैं लगाऊंगा ब्रॉड, कल मैं यार आपने बुलाऊंगा। सरकार साहब बात नहीं करने देनी है आपने। यार आपकी हिमायत कर रहा हूँ ना मैं। नहीं मैं मुझे हमायत नहीं चाहिए, मैं अकेला मैं कल्ला ही काफी हां ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने ਲਈ। हौसला रखो, बात सुनो मेरी पहले पूरी। यार ताइद तो कर ले लो भाई, मेरी बात की ताइद तो ले लो ना। स्कल क्रशर साहब की बात में तो आप नहीं बोले, ये इधर 20 सेकंड मैंने बात नहीं की, आप बीच में इनको बात दो करने बंदों का दो, माइक please. खुल गया। Let him speak, अच्छा let him करो speak. करो। स्टूडेंट साहब को करें तो बात, जी करें। देखिए बात सिर्फ ये है कि मैं वही इनको बता रहा हूं कि वहां पर भी जितनी देर मैं वहां पर आया, मैंने आगे कहा कि यार स्टॉप करो इस चीज को, ये इसका कोई फायदा नहीं। मैंने कॉल भी की, 2 बंदों को कॉल की, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं अगर इससे बढ़कर और मैं क्या कर सकता था। हाँ इसके खिलाफ बात हो रही है सरकार के, मैं इसको माइक ऑफर करा था कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऊपर जाके दे दो। जब इसने ब्रॉड लगाई सबसे पहले मैं यहाँ नीचे आया हूँ, इसने आगे जो बात की वो मैंने बात रिपीट की कि यार ये सरकार भाई ने ये कहा था कि गालियां देनी भी थी तो ताहिर की ब्रॉड पर जाकर क्यों दी। तो स्कल क्रशर साहब उस बात को मेरे ऊपर मंसूब करें कि शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। सरकार साहब इधर सुमन बुकमन हो गए ने, उदों दे नहीं कह रहे कि यार वो मैंने बात की तो ना बोलन दे रहे हो स्टूडेंट साहब ते ना ही जनाब खामोश होने दो। मैंने समझ नहीं आ रही तुसी राजी केड़ी गल ते हो। यार राजी है, कमेंट ऑफ करो यार, नीचे गालियां सुनवानी है तो चले जाते हैं फिर हम यार, अगर आपकी ब्रॉड पे आए हैं तो। फैजान साहब मैं एक बात करूंगा, मैं एक बात, जितना आपने नहीं इधर यार, बोल लिया ठीक है, ना, सरकार बात सुनो साहब आप बात करें सुनो, फिर जाने बात। तो जाओ कमेंट यार, आप कर दें, जाने तो कमेंट जाओ, आप कर दें, कमेंट जाने आप तो कर जाओ, नखरे ना करो। कमेंट क्या आप कर दें प्रॉब्लम है यार, भाई, मैं ऊपर एक बैठे मिनट चीमा भाई, एक कमेंट की मिनट तरफ एक देखो ही मिनट ना, चीमा भाई, बिल्कुल भी। इसको इस बंदे को शर्म नहीं आ रही जब वहां पे चलो, फैजान ठीक के है। ऊपर जो कुछ हो रहा था और जो ताहिर कर रहा था, किसी मुसलमान को ऊपर उठा नहीं रहा था, बात नहीं करने दे रहा था। तुम्हारी औकात देखो, फिर भी तुम्हें इधर बिठाया हुआ है, तुम बात भी कर रहे हो, सारा कुछ भाई, तुम्हारे कहने पे जिसकी कमेंट भी ब्रॉड और लगी हुई है उसको 3 दफा स्टूडेंट ने ऊपर भेजा था। रुक जाओ एक मिनट, भेजा क्या था वो भी ड्रामेबाजी है। एक भेजता है दूसरा नीचे ड्रॉप कर देता है, ये ड्रामेबाजी हमें ना जैसे आप बताओ। म्यूट बाद में लगा रहे हो कंडेम मुझे कर बाद दिया। में। यार एक मिनट, आप इस तरह नहीं रुकोगे, रुक जाओ। क्या हो आप, गालियां पढ़वा के फिर ये ड्रामेबाजी करते हो बाद में। तुम समझते हो हमें समझ नहीं आती, या तुम कोई ज्यादा होशियार हो जो छलापी मार दो एक ब्रॉड से दूसरी ब्रॉड पर। सारा ड्रामा किया तुम लोगों ने, फोतकी पे तुम थे, लेकिन जब गालियां पड़ गई हैं तो फिर तुम उधर आ गए हो। ताहिर ने मौका दिया किसी मुसलमान को की इतना के बोलने ऊपर का। मीर साहब इतना बड़ा ये आदमी है कि फोतकी के ऊपर बंदा अफसोस करने जाता है, ये वहां बैठ के ब्रॉड सुन रहा था और वहां बैठ के गालियां ही सुन रहा था। ड्रामेबाजी करते हैं यार, ड्रामेबाजी कर रहा है यहाँ पे बैठ के। टुराना साहब की वजह से इसको मौका दिया हुआ है। इनमें तो इतनी जुर्रत ही नहीं थी। फैजान वो जो ताहिर है वो ड्रामेबाजी कर रहा था, सिर्फ एक बंदा उसने बिठाया हुआ था, कभी मॉडरेटर खत्म कर रहा था, कभी वो रिक्वेस्ट खत्म कर रहा था, सारा कुछ उसने किया है। यहाँ पे जो बात खुल के आनी थी, मुझे जो पता चली है वो एक ही बात खुल के आई है। ताहिर ने ये ब्रॉड जानबूझ के की ताकि मिर्जा साहब को यहाँ पे एक्सपोज किया जाए, ताकि जमात की बात यहाँ पे खोली जाए। और सबसे बढ़कर जो मेरे लिए शॉकिंग था कि राजा ताउल मनान जैसे मुअज़्ज़ज़ शख्स की उन्होंने उनकी बेटियों की तस्वीरें लीक कैसे हुई जो उम्मे साहिबा तक पहुंच गई। और क्या ये वाकई मामला सच था कि ताहिर के साथ शादी होने वाली थी? क्या ये वाकई ये तो अब ताहिर के ऊपर सवाल उठ रहा है ना प्यारे भाई। हम क्या करें, हमें तो ये उम्मे साहिबा बता रही हैं जो आपकी ब्रॉड, ताहिर साहब की ब्रॉड के ऊपर बैठ के। उम्मे साहिबा मैंने आपको कहा है कि आप ये बात करें, ना करें, स्ट्रेच ना करें, स्ट्रेच नहीं अफजल साहब मैं नहीं स्ट्रेच कर रहा, ये तो एक उम्मे साहबा ने आउट ऑफ नोवेयर एक बात एक्सप्लेन की है। वहां पे बैठ के ताहिर साहब तमाम के तमाम उलमा को खुद भी गाली दे रहे थे और साथ में खुश हो रहे थे। किसी मुसलमान को ऊपर मौका नहीं दिया जा रहा था, यहां तक कि अफजल वड़ैच साहब को इनके ऊपर इल्जामात लगवाए जा रहे थे, इनको नीचे ड्रॉप किया जा रहा था। और तुम समझते हो अताउल मनान साहब कोई ज्यादा होशियार हैं? अपने ऊपर जरा सी बात आई कि मुल्हिदीन की वो पुष्ट पनाही करते हैं तो उन्होंने फौरन अली किधर है, अली किधर, अली किधर है। अब जवाब दें, आपकी बेटियों की तस्वीरें कैसे लीक हुई हैं ताउल मनान साहब, ये जवाब दें। आपके सामने उम्मे साहबा बैठी हुई हैं,
कैसे लीक हुई, जवाब दो। यार मीर भाई ना क्या आप करें, इस मीर तरह भाई, लोगों मीर को भाई लाते इस हो बात को अपनी ना जमात करें के अंदर? यार। ठीक है बेटियों की ठीक है, आप आपके तस्वीरें दे के जज्बात रिश्ते हैं दे के लाते हो। नहीं, अली मीर साहब मुझे बात भाई, करने दें। आपके जज्बात राजा हैं साहब इसकी आप, वजाहत यार आपके दें, जज्बात तस्वीरें हैं कैसे लीक हुई, इस तरह यार, लोगों को आपके लाते हो जज्बात जमात के हैं। अंदर। ये तो वो नैरेटिव बिल्कुल प्रूव हो गया कि इस तरह लाते हैं, लड़कियों की तस्वीरें दे के, लड़कियों के रिश्ते दे के। ये तो नहीं नैरेटिव यार, प्रूव हो गया भाई यहाँ पे। यार ना करें मीर साहब, हम सब लोग यहाँ पे सब इस बैठे बात, हुए हैं, अफजल भाई इनको थोड़ा आपकी सा की हुई समझाएं। बात जो है हम सब के ऊपर आती है। हालांकि कर आप अपनी मर्जी से रहे हो और हमारी बिल्कुल पैरामीटर्स के बाहर जाके कर रहे हो जो भी कर रहे हो, ये तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। और फिर बात सारे लोग जो हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारे ऊपर भी मुद्दा आता है कि भाई आप लोगों की ये बात मैं इस तरह की पर्सनल ना नसीहत करें में यार, बात किसी कर की रहा हूँ जो negativity आपके सामने अफजल साहब मुझे पता चली है उम्मे साहबा से। मैं मीर मैं यहाँ साहब पे नहीं, लेकिन बात आप बताएं stretch कर कि रहे हो ना, ताहिर stretch ने करके अगर किसी के साथ एक ऐसे मिनट बैठ साहब एक आप मिनट लोग जज़ाकल्लाह। बात ये वाली है कि आपको लगता है मीर साहब के ताहिर ने अगर उम्मे साहिबा को बुलाया था और ताहिर ने अपने ओन के ऊपर बुलाया होगा? ताहिर के अंदर इतनी है ताकत कि वो अपने ओन के ऊपर उम्मे साहिबा को बुलाए और ब्रोड लगवा ले? भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, कभी भी नहीं, हो ही नहीं सकता। या कि झूठ बोल रहे हैं और आगे कह रहे हैं ताहिर ने अपने ओन के ऊपर किया। ये बिल्कुल अताउल मनान साहब ने करवाया, बाद में फौरन से आ गए ऊपर आके कहा कि यार नहीं जी, मैं ये नहीं होना चाहिए। मीर साहब पता क्या, अफजल साहब आपका बीच में कोई हाथ नहीं है, मैं खुद ये बात कर रहा हूँ। स्पेकुलेट नहीं करना यार चाहिए, अफजल क्योंकि साहब हमारे आप पास सच जब तक बताओ कि राजा मन्नान साहब ऐसा काम करते हैं कभी? मेरी दारिश में नहीं करते यार, वो इस तरह नहीं करता करते नहीं है, यार, नहीं करते स्ट्रेच यार। करके हर चीज मुद्दा, जब तक आपके पास सबूत ना हो, इल्म गैब की बातें जो खुदाई इल्म है उसके ऊपर बेस करके ऐसी बात, तो वैसे ही शिरक होता ये है। काम तो जब आपके बड़े पास साहब इल्म ही नहीं है, उन्होंने कल भी किया है। कल जब ताहिर के ऊपर अली भाई ने बात की, उसके बाद फिर उन्होंने ताहिर को फोन किया, फिर ताहिर उसके बाद ब्रोड के ऊपर आया और फिर राजा साहब खुद ब्रोड के ऊपर आए। राजा साहब को आप नहीं जान रहे अभी, यहाँ आप शायद उनके दिल से उस तरह वाकिफ नहीं है। राजा साहब ये हरकतें करते रहे हैं, कल भी उन्होंने की हरकत ये वाली। अली साहब ने ताहिर के ऊपर बात की, ताहिर जोन सा है, ताहिर उसके बाद ऊपर आया, फिर उसके बाद नहीं चले राजा तालमनान आए और ये कहा कि जी मैं ताहिर को देख के आया, तो ताहिर तुम्हारे ऊपर अली साहब ने ये वाली बात और की। चीमा साहब आप अच्छा, रहने दो, छोड़ें, कल आप वो जितने बात होगी है। समझदार हो, हमें दीवाना पता है साहब भाईजान रहने दिया रहने करा दो। करो, छड़ अच्छा दिया करा करो, दीवाना साहब आप छोड़े अपने अच्छा साहब चले उस बात को छोड़ें। अफजल भाई आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात दुरुस्त है। मीर जरा यंग ब्लड है तो फिर हो जाती है बात। मीर साहब आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए वो जो बाकी मामलात हैं वो ठीक है जो भी है। बाकी राजा साहब को ये अप्रिशिएट करते हैं कि चले उन्होंने देर आए दुरुस्त आए, जब भी आए उन्होंने ब्रॉड तो बंद करवाई ना, और उन्होंने वो जो जैसा भी मामला है डांट उन्होंने दिया। दिल के हाल तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। खैर यार वो स्टूडेंट भाई आ जाए, गुस्सा ना करें, आप खामखा नीचे चले गए हैं, आ यार जाए और ये कुछ उसूल का बातें जवाब यहाँ दे पे दें। उम्मे साहिबा से हम कर रहे थे। उम्मे साहिबा कह रही थी कि मैंने जमात को एक्सपोज किया है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से केस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। उम्मे साहिबा आप मौजूद हैं? हेलो, अच्छा चलें वो आती हैं तो। जी फिजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नज़ीर साहब। जी मैं इसके ऊपर आया हूँ कि ज़ाती किसी मेरे से या किसी से इंसान से कोई भी हो ज़रूर इख्तलाफ करें, लेकिन खुदा के लिए माँ बेटियाँ, पंजाबी कहने तियाँ सब ये सांझियाँ, खुदा के लिए बेटियों की बात ना करें। ये वो ताहिर की बराड पे नहीं, आपने जो पता भी नहीं है, सुना जो ही भी नहीं। है, ताहिर ठीक है। की ब्रॉड के ऊपर नहीं फैजान देखे साहब मेरी की बात सुने, जो भी बेटी बात और है, उलमा जो की देखे बेटियों मेरी के माँ बारे की में जो बेटियां बातें हैं, की गई, बेटियां सबकी सब साझी कुछ होती नहीं हैं। था। हाँ नहीं मेरी बिल्कुल बात ठीक सुने, है। बेटियां सबकी साझी होती हैं, बस बिल्कुल ठीक देखे है। ना, आपने क्या राय साहब को बुलाया गया, आप जो मर्जी बात नहीं करें। यहाँ पर वडाय साहब ने और सैयद साहब ने बात की है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि नीयतें खुदा जानता है कि वो किसी के बुलाए पर राय साहब आई हैं या, लेकिन आके उन्होंने ताहिर को डांटा, ब्रॉड बंद कराई है। नीयतें खुदा जानता है, हम किसी की नीयत पर हमला, लेकिन खुदा आपने के डांट लिए दिया, अब हम भी बंद नहीं। करने देखें लगे हैं। बेटियों को ना दरमियान मिलाएं, हम भी बंद करने लगे हैं अब। देखें मैं बहस नहीं करता ना जितना डिबेट उन्होंने करनी है। किया है उतना हो गया, अब हम भी बंद करने लगे हैं। नजीर साहब आपने डांट दिया ना, अब हम भी बंद करने लगे नहीं हैं। डांट नहीं करना मैं, देखें मेरी बात भाई सुने, मैंने हमने गुजारिश कैसे की है, बंद करना है? मैंने अली अकबर गुजारिश तो की है ऊपर कि आया ही मैं नहीं है। गुजारिश अली की है अकबर खुदा के आएगा, लिए अली अकबर आके बात करेगा, बेटियां जो है ना वो सबकी उसके बाद साझी बंद होती करेंगे हैं, किसी की भी अली हो। अकबर साहब को पहले बुलाया जाए, अली अकबर साहब आके ऊपर बात नहीं, करें, उसके ठीक बाद है। ब्रोड को बंद कर लेते हैं ना। हाँ उसके बाद आके कोई मुसलमान वड़ाई साहब थोड़ी देर बाद आएंगे और हमें लेकिन कहेंगे दूसरी यार ऐसा बात करो। मैं ये करनी थी, हाँ देखिए सादा जी, अली अकबर नीचे बैठा है, अली बाप साहब को अकबर बची को नहीं पैनल पे है, बिठाते अगर हैं, जो भी किया राजा साहब के जज्बात बारे में में जो से जिसका बातें भी करनी है कसूर कर है, लेगा।
उसके बाद हम ऊपर चढ़ेंगे और हम कहेंगे जी सॉरी जी अली और नजीर साहब एक अहमदी का है, ताहिर अहमदी का, जिसने कॉल करके नहीं बुलाया देखें और तमाम के तमाम मुसलमानों की माओ बहनों के ऊपर बातें करवाई, फिर राजा ताउल मनान साहब प्लान के तहत बाद में देखिए ऊपर मेरी आए। बात सुने, एक अब मिनट के लिए यहाँ बात पे मान हमें जो लेता हूँ। बात पता चली है वो ये चली है कि ताहिर के रिश्ते वाला मामले की बात चली, आगे मैं आगे बात नहीं नहीं करूंगा मेरी बात क्योंकि एक अफजल साहब ने मिनट मुझे मना आपकी बात किया। मान लेते ठीक हैं है? कि तार का कसूर जी। है। क्या उम्र बाप छोटी बच्ची है? अच्छा, ये अब किसी आप की बातों उम्मे में आ साहब जाती के ऊपर हैं? इल्जाम लगाने लगे हैं नहीं इल्जाम नहीं लगाने लगा, वो क्या वो छोटी बच्ची है? क्योंकि उम्मे साहब साहब अकल है, निज़ामे होश से बात कर रही निज़ामे थी। जमात को एक्सपोज किया है। नहीं कोई यहाँ जमात पे की बात निज़ामे नहीं, जमात- अपना नहीं, अपना उन्होंने बताया हमें, उन्होंने बताया कनाडा में रेप हुए हैं आपके मुरब्बियों की ये ना तरफ हुए से, होंगे। मेरी बात फैजान सुने, मुरब्बी ने मलेशिया में किया वो है, और मामला है। ये जो यूके में हुए हैं, रेप हुए हैं आपकी ताहिर जमात के बात लोगों उसकी की होनी तरफ चाहिए। से। अब ये बात ठीक है? रेपों की बात कर रहे हैं, और ये एक जाति और कर रहे बात हैं ना। पता चली है कि रिश्ते दे के लोगों को अहमदी किया देखिए जाता है। मेरी हमें बात तो सुने, ये जो हमें तो मर्जी ये कहें। पता चला उम्मे साहबा यार से, ये उम्मे साहबा से पता चला है। तो यार जो मर्जी करें, मैं बात करता हूँ तियां सब नहीं साझियां, खुदा दे बिल्कुल वास्ते साझियां तियां सब होईਆਂ नहीं ने। साझियां। ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੈਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵੀ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ नहीं ਤਾਹਿਰ ਦੀ तमाशा ਤਰਫੋਂ। देखो मेरी बात सुने। क्यों वो चलो बंदा बर मैं कॉल करके बुलावे, बर मैं कॉल इतनी बात करके करनी बुला थी, के गालम जज़ाकल्लाह, गलोच इतनी बात करवावे, करनी थी। क्यों वो बंदा कॉल करके उस बंदे ने बुलाया वे और लोकां ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ यार ठीक मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन उम्र बाप क्या छोटी बच्ची हैं, इनकी ये जी हाँ जी सर इजाजत है कोई गल कर सकने हैं? मैं ना जनाब सिर रखा ते करो गल। सर अल्लाह दे फजलो करम नाल सारे इस जमाने दे औलिया अल्लाह 1 2 3 4 5 बैठे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ कोई ਨਾਲ। नहीं फंसे जनाब, तुसी फिर भी उत्ते हो, बड़े हो, उम्र च भी बड़े हो, माशाल्लाह तजर्बा भी है ਤੁਹਾਡਾ, सीनियर आदमी हो। फैजान भाई ਅੱਜ ਬਹੁਤ गैरत ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼लो करम ਨਾਲ। गैरत यकीन मनो, यकीन मनो, मैं देखो मलक साहब पता की है, जी मैं अपनी जात दी हद तक मैं बेगैरत हो ਗਿਆ ਸੀ, लेकिन अहमदिया ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ मैं बेगैरत हो के गैरत दिवा ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦੀ ਗੈਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ, ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਏ, ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਹਿਮਦੀ। ਉਮੇ ਰਬਾਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ईमानदारी गल है। ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੱਲ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਗੈਰਤ? ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ। बहुत अच्छे हो गया, गुस्सा कर लिया तुसी। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਸੂਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ? ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਮ ਨੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਰੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਈਜਨ ਅਲੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਉੱਤੇ ਚੀਨੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਚ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਾਹਦ ਅਸਕਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਅਫਜ਼ਲ ਬੜੈਚ ਅਜ਼ੀਮ ਬਰਕਤ ਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿ ਪਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਏ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਸਰ ਇਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਚੋਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਹਾ।
ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਲਾਂ ਮੇਰੀ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੋ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਹੱਕ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੈ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। जी क्या करें भाई? कौन भाई? ये चीमा साहब कौन भाई हैं? जी आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाइयों सब। मैं को वो क्या उन्होंने कुछ बोला है, मैंने कहा वो यानी इग्नोर ना हो जाए, उनको गुस्सा ना लगे कि यार आमिर ने मेरी गल का जवाब नहीं देता। की क्या उन्होंने कहते हैं कि समझ नहीं आई उन्होंने इनकी बोलो बात। कि गणेश नू लिया के खोलो गणेश नू। हाँ ठीक है, मैं मलक साहब नाफ तो 10 उंगल नीचे मैं तो जरा चेक करवाना वहाँ। अच्छा देखें, पहल नहीं करनी, मैंने पहले कहा हुआ है पहल नहीं करनी, फिर थोड़ा सा डोज मेरा हाई होता है। अच्छा सबसे पहले तो सब दोस्तों को प्यार भरा मेरा सलाम, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। मैं उमूमी तौर पर जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें आप यद तुला रखते हैं, क्योंकि इसका सियाक और सबाक पता होना और फिर अफराद के मुतल्लिक तफसीली जानकारी या मालूमात होना ज़रूरी होता है। मैं इसीलिए अफराद पर राय देने से बेहतर नज़रियात पर राय देने को तरजीह देता हूँ। अलबत्ता मेरे लिए शॉकिंग चीज़ ये हुई है जो मेरे सुनने में आया है। मेरे ख्याल से अफजल वड़ैच साहब से मैं गुजारिश करूंगा। अफजल वड़ैच साहब आप हैं प्यारे भाई? अफजल वड़ैच साहब मुझे बड़ा तेज़ी से अगर आप, मैं गुस्ताखी माफ़, मेरी इस हवाले से कम इल्मी जो टिकटॉक पर जो एक्टिविज़म हो रहा है या जो ये ताहिर ने सरकार साहब जो ये फैज़ान भाई वाली आईडी है इनको गालियाँ दी हैं, बेसिकली फैसिलिटेशन की है। यानी आमिर हक कौन होता है? ये जज है? ये खुद साला लन लेनी का गालियां देता है, ब्लास्फेमिया करता है ये आमिर हक। टिवाना नहीं साहब उतारे तो हो यार, ना उतारा करें, इधर आ दिलबर यार। नहीं ये किसने उतारा है? ये ज्यादती की है उसने मेरे साथ। जिसने उतारा ना उसने मेरे साथ ज्यादती की है, ये बहुत गलत बात है। आपको मॉडरेटर पता ने है? उतारा है बहरहाल। नहीं प्लीज नहीं लें, नहीं जिसने भी उतारा है, नहीं जिसने भी और उतारा है। आमिर भाई वो देखिए मुसलमान ओ भाई आपस में भाई मेरी आपको मैं कह रहा हूँ खुदा का वास्ता उसको लें, आपको पता ही नहीं, लेना ओके प्लीज लेना। जिसने उतारा उसे ज्यादती की है, अब वो टेम्पो टूट जाएगा सब बेचारे का, वो समझ जाएगा। उसको बोलने दें। हाँ जी हाँ बोल साहब तुम बोल, बोलना नाव के स्टार्ट नीचे करो। क्या है? दीवाना भाई आपने बोलना स्टार्ट करें। जी मैं तू ना बीच में आज रहने दे, तू चश्मा जरा साइड पे रख। टवाना साहब बड़ा सब कोई मॉडरेटर उतारेगा नहीं, उनको बोलने दे जी। टवाना साहब टल जाओ ना करो यार, ਤੁਹਾਡੀ क्यों ड्यूटी? ओ अफजल साहब इसको बोले टल जाए, ये यहाँ पर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट बैठा हुआ है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ऊपर है, उनको आके बोलने यहाँ दें। पर फैसले करेगा। उनको कोई ये जो उतारना नहीं है, लोगों को किसी ने गालियां उनको बोलने देता दें है, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर ये रहा हूँ लोगों को, मुझे एक बात बताओ, किसी के झूठे खुदा को अगर ये बोलेगा कि नाव के नीचे, वो मेरे सच्चे खुदा को क्या बोलेगा? आप लोग मुझे बोलते हो टल जाओ, मुंह में ये आमिर नजीर का पैर का अंगूठा लेके चूसता रहा जब यहाँ पर उम्मे बहन को गालियां पड़ रही थी। कहाँ था ये? किसकी के झूठे खुदा? जो ही झूठे हैं, आप उनको बुरा नहीं बोल सकते पलट के। अल्लाह अगर अकेला मेरा नहीं है, अल्लाह तुम्हारा भी है तो मेरा भी है, मेरा है तो तुम्हारा भी है। वो उठकर आगे से गाली देगा, कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो इसको गाली दूंगा, ठीक है मैंने गुनाह किया, लेकिन अल्लाह को अगर कोई गाली पड़वाए वो किस बात पे भाई? अबे ये क्या है? ये मुझे मैसेज आया, ये नाफ वाली बात इसने नहीं की, किसी और ने की। ओए हाँ जी, जब गुदगुदी खत्म हो जाए मुझे बता देना, मैं बात करूंगा। अबे बिस्किट खा रहा है मेरे से, जो है ना भाई साहब, बात कर लो। गुदगुदी तुम्हारी, जिसे तुम गुदगुदी कह रहे हो ना, उसे गांड फटना कहते हैं उर्फे आम में आमिर हक। जो तुम्हारी गांड में इस वक्त गुदगुदी हो रही है उसे गांड फटना कहते हैं उर्फे आम में।
ٹھیک ہے, بات کرنی ہے ڈھنگ سے کر. گالی گلوچ پہ آئے گا, خدا کی قسم اپنی ماں کو جو ہے نا آنکھیں نہیں ملا پائے گا کبھی. تجھے تیری ماں جو ہے نا وہ بری لگنے لگے گی. چل بات کر لے ابھی, یہ جو دہی بڑے کھا رہا ہے بھوسڑی کے کھا لے, بات بس کر لے. اتنی بات بس. اور مجھے کیا ہے, میں تو 1.5 گھنٹہ تیری ماں کو جی ادھر جو ہے پلیز, کھلا جی عام پلیز جو ہے اس کی پلیز ٹانگ. کیری آن, پلیز کیری آن, رکیں نہیں. جی جی. یہ بھوسڑی کا مفت کا دہی بڑے کھا رہا ہے, یہ سالا وہاں پہ جو ہے نا یہ بولتا ہے کہ گالی پڑ جائے کہ دہی بڑے نہ جائیں. رکنا نہیں پلیز. بڑا اسٹیمنا ہے بھائی تیرا. عام آدمی کی تو اتنی سی بات پہ تو غیرت جاگ جاتی ہے. کھا کیا رہا ہے یہ تو بتا. خالی ڈونگے میں چمچے کی آواز ہی آ رہی ہے. جس کو کھا رہا ہوں پبلک کو اس کی آواز آ رہی ہے. ہائے اچھا, آن اے سیریس نوٹ, وڈائر صاحب تھوڑا سا بریف کر دیجیے گا. وڈائر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اچھا وڈائر صاحب مجھے یہ چیز بتائیں, آسان لفظوں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو سرکار صاحب جو فیضان صاحب کی آئی ڈی ہے ان کو گالیاں پڑوائی ہیں طاہر نے, جو کہ احمدی ہے, وہی لڑکا, میں کیونکہ مکس نہ کرتا ہوں. بالکل ایسی وہ ان کی, اس نے براڈ کھولی ہوئی تھی, اس نے امے سسٹر کو وہاں بلایا. امے سسٹر کا اور ان کا آپس میں آج کوئی فیوڈ چل رہا تھا, تو وہاں پہ امے سسٹر نے ظاہر ہے پھر ان کو ایڈریس کر کے کافی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. تو اس کے اوپر سرکار جو ہے اور میر یہ سیخپا ہیں کہ بھائی ایسا طاہر کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھا سو دیٹس واٹ از گوئنگ آن ہیئر. ٹھیک ہے وڈائر صاحب, جزاک اللہ, کیونکہ مختلف آئی ڈیز ہوتی ہیں, مختلف نام, تو اس سے مسئلہ. اچھا وڈائر صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ وہی طاہر احمدی ہیں جو سرکار بھائی کی براڈ پہ ماڈریٹر ہیں یا تھے؟ جی بالکل, بڑا اچھا ان کا آپس میں تال میل چل رہا تھا آج کے دن تک. یہ آج بریکنگ نیوز ہے ہم سب کے لیے کہ یہ وہی طاہر ہے جو کنورٹ ہوئے, اور فیضان ایکچولی ہے, ان کا نام فیضان ہے جو عالمدین ہے, اور ان کا اچھا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. یہ ہمارے جو ٹوانا صاحب جو آپ کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت گالیاں دے رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کا اچھا بیٹھنا ہے ادھر ان کی ٹوانا کی براڈ کے اوپر, طاہر کی براڈ کے اوپر. تو یہ آج کے دن تک تو ان کا بہت ہی کورجیل انٹریکشن چل رہا تھا, مثالی. لیکن آج یہ جو پھٹا پڑا سارا کچھ سسٹم, یہ کوائٹ شاکنگ ہے فار می اینڈ مینی ادرس ٹو. اچھا دیکھیں وڈائر صاحب, میں نے آنیسٹلی اسپیکنگ, آپ کو پتا ہے میرا یہ سبجیکٹ نہیں, نہ میرا انٹرسٹ آف ڈومین یہ ہے. صرف مجھے